All right. Good morning, everybody. My name is Naveen Talwar. Thanks, Rahulji, for inviting me. This was a little bit quickly. He just called me, I think, yesterday or day before yesterday that you can come for a sharing. So I'm a little bit unprepared, but we will try to do a justice and see whatever best we can share with the fellow BCI members. Uh, First of all, I like to share that what our company is all about and what we do. So we are a family-owned business located in Faridabad, and we manufacture packaging material which goes for primary food medical items, and also we produce tubes which goes for cosmetics. The company's name is Skypack India. To tell you a brief about company, I think the best is I hand over the stage to my father, who started this company on his own back in 70s. I think he'll be better person to describe that, and also a little bit of state of affairs, how it was before we joined the BCI program. Over to you. Good morning, everyone. I'm Naresh Kumar, and I started my company in 1971 after graduating engineering. And it was just a one small room company, and I just started with plastic injection molding to make some plastic containers. Then we eventually added a little more business. Yes, this you can see is uh, we were adding more packing material, rigid packing material for Dabur, for Unichem Laboratories, for some other pharma companies, and the Hammer Master Flask components. And then I ventured my business into making blank video cassettes. This is the picture where I started in blank video cassettes, and I imported some good machinery from Taiwan. I am looking. I'm in Taiwan at this place for my trial of my plant and learning the new machine. And then all these things were set. There was a cable TV on set, and it just nosedived. And because of the nosediving, everything finished. Then we had to restart again after selling of all the plant and machinery which I had. From 73 to 93, I lost 20 years of my life, and I was just minus at that time. In 1993, I restarted with flexible packaging, and I started delivering some packing material to Hindustan syringes and medical devices, and for the Dispovan syringes. So this is already in Ballagwad. They started, and that time they were just requiring 350 kg of material. They were buying. This is the Dispovan syringes. No, they were buying just 350 kg from Flex at that time. Since I had no resources, uh, we started with a very small machine of Indian company and started making Dispovan syringes. My wife Shashi was associated with me for the day one from the earlier ages of Skylab, which was an injection molding unit. Now, she was my right hand in developing all these structures. She is BSc LLB, and she was looking after all the other infrastructures. So here I started manufacturing this dissolvent packing material. This was again a new item for me. I was not knowing even ABC of this product. And at that time, Naveen was doing his MBA classes from MIT. And when he passed out, then he joined me in my business. And then I told him to go in for market because there's a good scope. I knew it, there is a big scope in, as Rahulji was saying, I was aware of the packing material requirements in market because we had good competition in Flex, and Flex is a very, very big giant, is an ocean, and they were doing huge quantities. So I also, after his MBA, he just ventured into the market and just bought the outside market other than the disco wine. So then we added more machinery, we added more plant. I was just having this one small plot here. Luckily, thank God that we got another adjoining plot, then another adjoining plot, and then we ventured into one machine, then second machine, then third machine. We were buying poly film from outside, then we had our own blown film line from Windsor, then we added second blown line. So gradually God was great, and our
our total growth was around 20-25% annually at that time, because we were just moving and dashing into the market. And Naveen was just able to capture the good market, and we were just adding more machinery and eventually. नरेश जी, जब नरेश सर आपने जब बीसीआई ज्वाइन किया था तब क्या सिचुएशन थी कंपनी की? मैं अब उस पे आ रहा हूँ। जब मैंने अब एट दैट टाइम मैं जैसे वो कहते हैं ना कोल्लू बना हुआ था प्लांट के अंदर, सुबह 7:30-8 बजे हम दोनों सुबह 7:30-8 बजे जाते थे फैक्ट्री जा करके। शी यूज्ड टू कम बैक बाय 1 o'clock, मेरे को खाना खिला के, और मैं फिर रात को 7:30-8 बजे तक फैक्ट्री में बैठा रहता था। तो मैं एक्चुअली बीइंग इंजीनियर, मेरे को शायद उसी में खुशी मिलती थी कि मैं आई वॉज मैन ऑफ द फ्लोर। तो मैं देखा जाए तो मेरे को बिजनेस करना नहीं आता था, तो ना ही तो हम दोनों जने, मैं और वाइफ दोनों जने अपना लगे रहते थे। जब बीसीआई का हमें पता लगा राहुल जैन जी एक कुछ सिखाते हैं, तो नवीन ने कोर्स पहले किया दिल्ली में, तो फिर मेरे को इसने जबरदस्ती कलकत्ता भेजा कि 4 दिन का कोर्स करके आओ वहां पर। और आई वेंट टू कलकत्ता टू अटेंड दिस 4-day कोर्स, एंड आई वाज अमेज्ड टू सी कि व्हाट इट इज एक्चुअली, ये है क्या चीज, ये है क्या चीज। और जब हम वहां से आकर के फिर मैंने और शशि ने दोनों ने हमने 8 month कोर्स किया। नवीन वाज आल्सो डूइंग, ऑल थ्री डिड द 8 month कोर्स। और उसके बाद बिल्कुल सिचुएशन थी नरेश सर, पहले क्या सिचुएशन थी? पहले तो हम शशि बताया सर, पहले तो हम बस वो ऑपरेशंस में फंसे रहते थे ना सारा दिन। एक आया स्टाफ आया, बस फायर फाइटिंग है। सुबह जाते ही मैं गाड़ी से उतरती थी तो फायर फाइटिंग शुरू हो जाती थी, मैडम ये प्रॉब्लम, मैडम ये प्रॉब्लम। वो करते करते मेरे को फिर एक मीटिंग करो, दूसरी करो, मेरे को फुर्सत ही नहीं मिलती थी 2 मिनट भी, मैं आपको बताऊं, कुछ भी करने की। बस करते करते मेरा लंच टाइम हो जाता था। तो उस समय क्या क्या प्रॉब्लम्स होती थी, किस किस्म की प्रॉब्लम होती थी? प्रॉब्लम सारी, क्योंकि ओवरऑल सारा ये तो सिर्फ प्रोडक्शन देखते थे और क्वालिटी को देखते थे। नवीन मार्केटिंग में था, बाकी ओवरऑल एचआर की प्रॉब्लम है, पर्सनल प्रॉब्लम है, प्रोडक्शन प्रॉब्लम है, उनकी मीटिंग्स अरेंज करनी है, लाइक स्टोर्स की प्रॉब्लम है, रॉ मटेरियल्स की प्रॉब्लम है, परचेज की प्रॉब्लम है, हर टाइप की प्रॉब्लम्स वो मैं खुद ही सॉल्व करती थी ऑफिस के अंदर। और एक मीटिंग बैक टू बैक मीटिंग्स चलती थी, ये करते करते बस थक के आगे घर आ जाओ बस। So just to add, उस टाइम पे before pre-COVID, जैसे आपने अभी सुना with my father the whole bit of background, तो कंपनी ने बहुत ग्रो किया, हम लोगों ने खूब मेहनत करके बहुत ग्रो किया, and we have a very good name in the industry and we are growing very well. We were growing very well before BCI, लेकिन हम तीनों सुबह से लेके शाम तक लगे हुए थे और पिसते रहते थे। मैं पर्सनली बड़ा फ्रस्ट्रेटेड रहता था seeing that how much my parents are involved in lot of day-to-day operations. वो जाएंगे तो काम चलेगा, वो नहीं जाएंगे तो काम ठप। मेरी इन्वॉल्वमेंट फैक्ट्री में कम रहती थी, बट आई वाज मोर इन्वॉल्वड इन द सेल्स एक्टिविटीज, मार्केट डेवलपमेंट, बिजनेस डेवलपमेंट, एंड आई यूज्ड टू फील कि ये मैं क्यों कर रहा हूँ, किस लिए कर रहा हूँ, बिकॉज मैं इस तरीके से काम नहीं कर सकता हूँ। सुबह ऑफिस जाकर के वापस शाम को आना, सुबह से लेके शाम तक करते रहना, डे टू डे चिक चिक कह लो, जो टुडे व्हाटएवर द इश्यूज ऑफ स्टाफ, हर एक प्रॉब्लम ला करके सामने पुटिंग इन अक्रॉस इन फ्रंट ऑफ माय पेरेंट्स कि लो जी अब आप सॉल्व करो और लगे रहो। अब वही हुआ कि अल्टीमेटली my father became one of the best problem solvers in the world. My mother became the best administrator, and I was trying to become the best salesman in the world. और हम तीनों लगे हुए हैं different directions में, आपस में alignment है नहीं। I used to feel कि उनका करने का स्टाइल ठीक नहीं है, they used to feel मैं जो कर रहा हूँ, मैं आवारा हूँ, मैं सारा टाइम बाहर रहता हूँ फैक्ट्री के, मैं कुछ काम नहीं करता हूँ, तो इस टाइप की एक म्यूचुअल बहुत डिसअलाइनमेंट थी बिफोर दिस प्रोग्राम। I used to tell them कि ये काम करने का तरीका ठीक नहीं है, because going in the field I used to see lot of companies, large corporates, जिसमें बिजनेस का मालिक नहीं आता है कंपनी में और कंपनी चल रही हैं। फैक्ट्रीज ऑल अक्रॉस इंडिया, दे हैव मल्टीपल फैक्ट्रीज ऑल अक्रॉस इंडिया, मालिक आराम से छुट्टी कर रहा है या इज रिमोटली मैनेजिंग इट। एंड आई यूज्ड टू टेल दैट, बट दैट मैसेज नेवर यूज्ड टू गो अक्रॉस टू आवर फैक्ट्री, आवर टीम, आवर पेरेंट्स आल्सो, माय पेरेंट्स आल्सो, कि ये कैसे हो सकता है, कि कैसे हम काम में ना जाएं और काम चले। तो वो मेरे लिए बहुत बड़ा फ्रस्ट्रेशन पॉइंट था, इतना बड़ा कि दैट आई ऑलमोस्ट वेंट अहेड एंड टॉक टू कपल ऑफ पी कंपनीज कि भाई लेट्स कम आउट ऑफ दिस बिजनेस एंड लेट्स सेल इट, क्योंकि मैं ये चला नहीं पाऊंगा आपके बाद।
मैं इस तरीके से नहीं चला सकता हूँ। एंड आई वाज डेस्परेटली लुकिंग फॉर सम वे आउट, कहाँ से कैसे इस प्रॉब्लम से निकले, बिकॉज मेरे को ये बहुत बड़ा मेंटल स्ट्रेस। Fortunately, I got access to Rahulji's program, and I did a 1 day, then a 3 day, and then did a 4 day program. And I knew after 1 day that this is something which I cannot do on my own, something which I have to involve my parents, because they were lot of involvement उनकी day-to-day operations में थी. I'm thankful my father went for a 4 day program, और उसके बाद हम तीनों ने 8 months program किया, तो literally my mother also joined. उस समय भी नरेश जी आना नहीं चाह रहे थे। नरेश जी ने बोला मैंने 4 दिन कर लिया। आई रिमेम्बर कलकत्ता में आए हुए थे, सो वी वर स्टेइंग इन द सेम होटल एंड जहाँ वर्कशॉप हो रही थी, तो नरेश जी कह रहे थे हाँ 4 दिन करेंगे, उसके बाद नवीन संभाल लेगा। तो नरेश जी आप प्रोग्राम करना चाह रहे थे 8 महीने का, नहीं करना चाह रहे थे? नहीं, मेरा मन नहीं था करने का, ऑनेस्टली। क्यों? मैं शशि और नवीन दोनों कर ले। मैं आई वाज मैन ऑफ द प्रोजेक्ट्स बेसिकली। मेरे को इन चीजों को ज्यादा नॉलेज बेस भी नहीं है और ज्यादा समझ भी नहीं आती चीजें, ऑनेस्टली स्पीकिंग। बट जब मैंने इसके रिजल्ट्स देखे, दे आर रियली अमेजिंग रिजल्ट्स हैं। और हालांकि एक सेकंड, शुरू में कैन यू हियर, कैन एवरीबॉडी हियर देम गाइस? यू कैन हियर देम? यस, ओके। सो शुरू में आपका रेजिस्टेंस रहा था कि नहीं जी आप कर लो, मैं पैसिव ही हूँ। फिर बड़ी मुश्किल से मैंने आपको खींच के, आपको मेरे को याद है आपको मैंने बोला था कि अच्छा ठीक है काम करो, वो 4-6 हफ्ते के लिए कर लो, उसके बाद रिफंड लेके चले जाना, और आप पहले एक बार ट्राई तो करो, फिर उसके बाद नहीं होगा तो नवीन कर लेगा। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। मैं उसके बिल्कुल मूड में नहीं था, और सिर्फ इसी कंडीशन किया था मेरे को, नहीं अगर अच्छा आए तो आई गो बैक। बट उसके बाद मेरे को जैसे इंटरेस्ट आया और जिसके रिजल्ट्स मैंने देखे शुरू किए, मैं आपने भी मेरे को फोर्स किया नहीं इसको कंप्लीट करो आप, तो बिकॉज वी आर ऑल फैमिली टुगेदर, तो आई थॉट कि इट्स ए वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर दी us to have this new chapter in our life, and that's how I also went along with my wife also. आपका मैम कैसे था कि आप क्यों ज्वाइन किया, आपने क्यों ये वर्कशॉप की? मोस्टली नवीन की वजह से। तो मोस्टली तो नवीन ने धक्का मारा इसलिए किया है। नहीं, नवीन बहुत फ्रस्ट्रेटेड था कि उसका स्टाइल ऑफ वर्किंग हमारे स्टाइल ऑफ वर्किंग से बिल्कुल डिफरेंट था, जैसे इसने बताया है। बच्चों के साथ बैठता नहीं था, बस इधर से उधर, इधर से हम लोग वर्कोलिक थे, वर्कोलिक जैसे कहते हैं, वर्कोलिक जो हमारी नेचर वैसी थी। हम जो बिजनेस करने का तरीका भी डिफरेंट था। बट अब जैसे ग्रो करना है तो वी हैव टू लर्न द न्यू टेक्नोलॉजी एंड न्यू सिस्टम्स। ये घर ही नहीं आता था, रहता ही बाहर था। फिर मैं भी घबरा लग गया, मेरे को भी शॉक, कैसे इसको लाइन पे लेके आए। तो जब इसने आपके साथ कोर्स किया 4 डे का, फिर ये मेरे पास आया, मम्मी आप सारे फैक्ट्री की ऑपरेशंस और मीटिंग्स ये सब आप करते हैं, क्यों ना आप मेरे साथ हमारे साथ करो ये कोर्स 8 मंथ्स। तो उस टाइम पे मैंने कहा ठीक है भाई, इसकी लाइफ बनानी है, आगे तो इसी ने फैक्ट्री संभालनी है, सब कुछ इसी ने करना है। तो मैंने कहा बिल्कुल, मैंने कहा यस नवीन, मैं बिल्कुल डेफिनेटली ये कोर्स स्टार्ट करूंगी। और जैसे ही सर मैं आपके पास आई, तो आपका जो वे ऑफ टीचिंग था, ओह माय गॉड, मार्वलेस। तो उससे हमें बहुत ही ज्यादा हम इम्प्रेस हो गए। तो आप इमेजिन करेंगे सभी कि हम दोनों ने तो, मैंने तो 100% आपकी क्लासेस ज्वाइन करी, एक भी मेरी मिस नहीं हुई। और मेरे हस्बैंड है, इन्होंने, नरेश जी ने शायद 1 या 2 मिस करी हैं। और नवीन भी इसमें काफी इंटरेस्ट लेता रहा, और आपसे क्वेश्चनिंग करके, और फिर हम तीनों ने मिलके मीटिंग्स करके, और हमने आपके अकॉर्डिंगली बिल्कुल जैसे आपने कहा, रात है तो रात, दिन है तो दिन, वो करते हुए आपके सिस्टम्स को हम फॉलो करते रहे। और मैं प्रैक्टिकली उसको अपनी, मेरी 2 ES थी और पीसीस के थ्रू मैं वो इमीडिएटली साथ के साथ उसको प्रैक्टिकली उसको इम्प्लीमेंट करती चली गई। और इन्होंने मेरी पूरी हेल्प करी, नवीन ने भी। वेरी नाइस। तो इसमें नवीन बेस्ट चीज इसमें रही कि क्योंकि हम तीनों वर वर्किंग टुगेदर एज बिजनेस ओनर्स, और एक डायरेक्शन में, वो डायरेक्शन राहुल जी देते थे वीक बेसिस पे,
ये होमवर्क है, करना है, करो, सोचो मत, देखो मत, डोंट थिंक अबाउट इट, ये क्या है, क्यों हो रहा है, किस लिए हो रहा है, कर लो, डू इट। जैसे सिंपल थिंग्स लाइक अलाइनमेंट मीटिंग करनी है तो करनी है, मैं आपको प्लेटफॉर्म दे रहा हूँ, इस तरीके से आपने करनी है, हमने कर ली विदाउट क्वेश्चनिंग आस्क्ड एंड वी वर वर्किंग इट टुगेदर। व्हेन वी वर वर्किंग टुगेदर इन अ गोल, 3 लोग बिजनेस ओनर्स इकट्ठे काम कर रहे हैं, तो इट हैड अमेजिंग पावर। वन इज हमारी आपस की अलाइनमेंट, बिजनेस का फोकस, एंड फोकस आल्सो शिफ्टेड टू लॉट ऑफ न्यू एरियाज। जैसे राहुल जी कहते हैं फोकस ऑन प्रॉफिट, ऑन कैश फ्लोज, क्या घर में आ रहा है, इन चीजों को फोकस को भी जब शिफ्ट किया, उसके अमेजिंग 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 रिजल्ट्स आए, which also helped today in our lockdown period, जो मैं बाद में बात करूंगा आपसे। बट पॉइंट इज की दैट टुगेदर वर्किंग जो हमने करी, मतलब मैं अगर आज उस वक्त अकेला वर्कशॉप कर रहा होता तो आज हम लोग बिल्कुल कोलैप्स हुए होते। इम्पॉसिबल फॉर एक बिजनेस में अगर 2 या 3 ओनर्स हैं, एंड अगर वो एक ओनर सोच रहा है कि जी मैं अकेला कर लूँ, उसके बाद मैं दूसरे को ज्वाइन करा लूंगा, either you're wasting time or this will have very less effect. I was very fortunate that my parents agreed to this and we did this together, which was really good, best decision I would say in my life which I have taken, or I would say we all have taken. और उसकी वजह से there has been a lot of things. I'll just like to share the scale of our operation just to understand. We have 2 factories and we have close to 700 people working across shifts. We have 2 shifts right now. And those 700 people, we are catering to almost close to 120, 130 clients. और our business is pure B2B. तो क्योंकि ये प्राइमरी पैकेजिंग मटेरियल है, जो कि आपके इमेजिन करिए नूडल्स के, बिस्किट्स के, सिरिंज के प्राइमरी पैकेजिंग में जाता है, तो ये फूड कंपनीज हमारे टारगेट कस्टमर्स हैं। तो उनकी जो सप्लाईज है, उनके जो शेड्यूल्स हैं, हमें वो मीट करने होते हैं। अगर इतनी क्वांटिटी आपको इतने दिन चाहिए तो आपको हमने वो प्रिंट करके बनानी है। एवरी जॉब, एवरी ऑर्डर इज इन अ वे कस्टमाइज्ड। तो हमारा सारा कुछ मेड टू ऑर्डर है। जो ऑर्डर आएगा वो हर एक ऑर्डर एक यूनिक है, बिकॉज उसमें न्यू आर्टवर्क है, आर्टवर्क चेंज होते रहते हैं। तो वी कैन नॉट कीप इन्वेंटरीज ऑल्सो कि भी इट्स नॉट लाइक स्टील इंडस्ट्रीज की एक पर्टिकुलर साइज का स्टील है, उसको आपने स्टॉक करके रख लिया और बेस्ड ऑन डिमांड आप बेचते रहे। सो आर इंडस्ट्रीज की हमें शुरू से लेके एंड तक मोटा मोटा एज पर ऑर्डर हमें प्रोड्यूस करना। सो इट इज अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड बिजनेस, और उसको संभालने के लिए बेसिकली वी वर डिपेंडेंट ऑन our core team of people, core team of HODs, our core team of senior team members, जो जिनके बेसिस पे फैक्ट्री यूज्ड टू रन। अब उसमें चैलेंजेस ये आते थे कि दैट बिकॉज ऑफ सच a huge dependency on them, obviously people also do take advantage of the situations. People do also take कि उनको पता है कि हमारी डिपेंडेंसी उनके ऊपर बहुत ज्यादा है। तो देयर वाज, एंड रोज उनकी प्रॉब्लम्स आ रही थी, मेरे पेरेंट्स के ऊपर भी, मेरे ऊपर भी। I think that my mother wants to speak on that regard. हाँ जी, और हिंदी में नवीन। ठीक है। हाँ जी मैम। बहुत प्रॉब्लम्स आती थी। जो एचओडीज थे वो बहुत मेरे को प्रॉब्लम फायर फाइटिंग करते थे कि मैडम ये मैडम वो, और उसके बाद और हम मेरे को धोखा देते थे सर कि हम छोड़ के चले जाएंगे, और आपस में लड़ते थे एक के बाद एक। मैं घबराती थी कि भाई ये छोड़ के चले गए तो फैक्ट्री कैसे चलेगी, प्लांट इंचार्ज अगर चले गए तो फैक्ट्री की प्रोडक्शन कौन करेगा। वो थोड़ी सी बात के ऊपर आके दोनों जने, एक दूसरी स्टाफ का होता था, दूसरी प्रोडक्शन मैनेजर होता था, एक दूसरा होता था, दोनों आके मेरे सामने, कभी अकेले कभी दोनों आके ऐसे ऊंची ऊंची फायर फाइटिंग करते थे। तो मेरे को इतना टाइम लग जाता था ना उनको सेटल करने में, और आपस में ये। पर अब सर उसके बाद से जैसे ही मैंने आपका कोर्स किया तो बिल्कुल रिलैक्स है, कोई जाता है जाए। तो उसमें ये होता था कि मोस्टली दीज वर कॉन्फ्लिक्ट्स लिंक टू प्रोडक्शन शेड्यूल्स। इस कस्टमर का सप्लाई नहीं और उसकी वजह से प्रॉब्लम स्टार्ट, सेल्स टीम और प्रोडक्शन के बीच में टू मैनेज शेड्यूल। मेनली ईगो प्रॉब्लम्स, हाँ ईगोस बड़ी थी आपस में। तो अब प्रोडक्शन क्या हो रही है जी, जिस सेल्स वाले ने जोर से आवाज लगा दी कि जी मेरा कस्टमर नाराज हो रहा है, मेरा कस्टमर को मटेरियल देना है, जो जोर से चिल्लाएगा उसकी प्रोडक्शन पहले होती थी, जो बेचारा थोड़ा कम होती थी आवाज उसकी प्रोडक्शन बाद में होती थी। तो दिस वाज आवर वे ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग। और मतलब इट वाज अ chaos, मतलब। और मेरा जो था, सिंस आई वाज नेवर इन्वॉल्वड इन प्रोडक्शन, आई वाज नेवर इन्वॉल्वड इन ऑपरेशंस, आई वाज नेवर इन्वॉल्वड इन लास्ट 2002 में मैंने बिजनेस ज्वाइन किया था। उसके बाद स्ट्रेट अवे आई वेंट टू मार्केट डेवलपमेंट एंड सेल्स, लिटरली डेवलपिंग क्लाइंट्स। आई हैड अ सेपरेट टीम जो कि उसमें लगी रहती थी। अब वो भी करने का तरीका बड़ा ट्रेडिशनल था, बट आई विल टॉक अबाउट लेटर।
बट वो तो पॉइंट आई एम ट्राइंग टू से, मैं कभी ऑपरेशन में घुसा ही नहीं, मैं कभी फैक्ट्री के डे टू डे ऑपरेशन में कभी नहीं घुसा। बट ड्यूरिंग दिस 8 months आई टुक अ सबैटिकल फ्रॉम माय एंटायर लाइफ, मैंने पूरा सब कुछ छोड़ छाड़ दिया और लिटरली 8 महीने के लिए इसके अंदर टोटली डाइव हो गया, घुस गया। और जो राहुल जी बोलते गए वो हम करते गए वीक बाय वीक। What gave you the strength to totally dive into this for 8 long months? आप आप जो आकर के सुबह हमें उठाते थे, करो करो करो, हो अरे जाएगा और हो जाएगा, एक एक जो आपने टूल्स दिए, इतने सारे टूल्स दिए। 4am yes is a very very powerful tool. I changed my life during that time. मैं 4am और 5am नॉर्मली मैं करता था because I am very fond of cycling. मैं मॉर्निंग साइकिलिंग राइड्स करता हूँ every 3 times or 4 times in a week. Sometimes daily every rider also I do, मैं रोज साइकिलिंग जाता था, उसके लिए सुबह अर्ली मॉर्निंग मैं करता था। पर सुबह उठ के काम करना वो थोड़ा चेंज था कि सुबह उठ के आप सीधा कंप्यूटर खोल के या आप विदाउट इवन कंप्यूटर यू वर्किंग ऑन इट, वो भी सिस्टम्स बना रहे हो, वो भी आप प्रैक्टिस के कामों के ऊपर कर रहे हो। मैंने लाइफ में ऑनेस्टली कभी नहीं किया। जब वो किया तो उसकी जो ट्रू पावर जो मिली, अमेजिंग अमेजिंग, जो ठंडे दिमाग से एक सॉल्यूशंस निकल के आए, वो वर्ड्स माइंड बॉगलिंग, माइंड अमेजिंग। और जो एक होल कॉन्सेप्ट है कि आप अपने आप को टाइम दो, सारी दुनिया बंद करके, लिटरली कमरे में लॉक करके, चाहे वो एक होटल रूम हो, चाहे वो आपका एक कमरा हो, चाहे वो एक आइसोलेटेड जगह हो विदाउट डिस्ट्रैक्शंस, वो एक बहुत ही अमेजिंग अमेजिंग टूल है जो कि राहुल जी ने जो दिया है ना, दैट इज विल बी विद मी फॉर लाइफ लॉन्ग। और आज भी कोई प्रॉब्लम का सोल्यूशन आता है, दैट इज व्हाट इट हेल्प। तो 8 महीने वही किया, वो करके एक एक चीज खुद हाथ से बनाई अलॉन्ग विद माई पेरेंट्स, एंड उन चीजों की इम्प्लीमेंटेशन साथ साथ हमने जॉइंटली करी। माई मदर हैड अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन दैट बिकॉज शी वॉज इन्वॉल्व विद द टीम। हमने नई टीम सेटअप करी, जैसे जैसे राहुल जी ने गाइड किया, हायर्ड मोर पीपल, और जो ओवरऑल डिपेंडेंसी ऑन की सीनियर स्टाफ मेंबर्स, उनको भी फ्री किया। बिकॉज उन लोगों के, हम इतने सीनियर टीम मेंबर्स को, जनरल मैनेजर्स को, एक्सपीरियंस लोगों को हम हायर करके उनसे सिंपल एक ऐसा काम करवा रहे थे उनसे, जो कि एक्चुअली एक 10-20 हजार की एक जूनियर स्टाफ मेंबर भी कर सकता है, जो कि हम बहुत सीनियर टीम मेंबर से करा रहे थे। तो द वेस्ट ऑफ देयर टाइम आल्सो, जिसकी वजह से ईगोज आते थे, क्लैशेस आते थे कि ये मेरा काम थोड़ी ना है जो आप मुझे कह रहे हो, सिंपल फॉलोअप्स, व्हाई वुड समबडी वांट अ सीनियर मोस्ट गाय टू डू, जो कि वो कर रहे थे। तो ये सब सिस्टम सारे हमने बनाने शुरू करे, उसके बाद इट हैड अ रियली अमेजिंग चेंज। तो पहले आपका ऑन टाइम डिलीवरी, डिस्पैच, क्वालिटी, इन्वेंट्री, ओवर एक्स्ट्रा इन्वेंट्री वगैरह क्या हिसाब किताब रहता था, कैश फ्लो वगैरह? तो बिगेस्ट प्रॉब्लम आई वुड से वाज कि हम लोग जितना भी काम कर रहे थे, जैसे भी हम ग्रो कर रहे थे, हमारी सीसी लिमिट खत्म नहीं होती थी। वी यूज्ड टू हैव एक्सपोजर ऑन बैंक्स, हमेशा सीसी चलती थी, ह्यूज अमाउंट ऑफ लोन्स रनिंग। और एक माइंड में और एक अपने ना एक कोर में एक बिलीव था कि बिजनेस में सीसी लिमिट तो चाहिए, मार्केट में क्रेडिट तो देना ही देना है, और लोन्स तो लेनी ही लेनी है फॉर पर्पस ऑफ एक्सपेंशन। तो ये जब एक आपके अंदर एक कोर बिलीफ होता है और आपके वो स्ट्रेट अवे बिलीफ जाता है आपके स्टाफ में भी, और वो आप बैंक से उसके फायदे उठाते हैं। तो जो भी हम काम कर रहे थे, वी वर ऑलवेज एक्सपोज, हमेशा बैंक्स के अंदर थे ही। ये मैं आज की बात कर रहा हूँ, आपसे 1 साल पहले की। हम लोगों ने ये बैच खत्म किया था जून 2019 में, लास्ट ईयर। तो नाउ इट्स बीन ऑलमोस्ट 1 year सिंस वी आर आउट ऑफ दिस बैच। बट उस टाइम तक I would say initially for 3 to 4 months तक we have a very high utilization of CCs. इन्वेंट्रीज का कुछ पता ही नहीं। और जो आप बात कर रहे हैं जी ऑन टाइम क्या होता है जी, उस वक्त तो हमारे पास डेटा मेट्रिक्स थे ही नहीं। बट जो वीकली मैं बात करूं, रोज की लड़ाइयां, रोज। आपका माइक, आपका वो कर गया है, तेरा फ्रीज कर गया है नवीन, आप फ्रीज कर गए। कैन एवरीबॉडी हियर हिम? नवीन? लेट नवीन कम। बट मैं सबको एक चीज कहना चाहूंगा, ये कोर्स आसान नहीं है, ये बहुत डिफिकल्ट कोर्स है। आपको पूरी डेडिकेशन देनी पड़ेगी टू अचीव द रिजल्ट्स। और जब रिजल्ट्स आएंगे तो बहुत ही अमेजिंग रिजल्ट्स है। तो But पहले क्या था, पहले नवीन बता रहा था पहले क्या प्रॉब्लम होती थी? पहले जैसे बता रहे हैं कि इन्वेंट्री का कुछ पता नहीं है, क्या स्टॉक पड़ा है, क्या मटेरियल नहीं पड़ा, कितना पड़ा है। तो जैसे बता रहे हैं किसका मटेरियल बनना है, उसका मटेरियल बन जाएगा, उसका माल चला गया, बाकी कुछ पड़ा हुआ है, तो बड़ा हेफाजत था एक पे। फिनिश, सेमी फिनिश,
रॉ मटेरियल का स्टॉक पता ही नहीं है क्या है, किसी को मालूम मतलब ही जो नहीं है। नॉर्मल पुराना तरीका हुआ करता था उसका स्टॉक बना हुआ है, उसका सिस्टम पड़ा बना हुआ रहने है, दो। पर वो बड़ा हैफजर्ड वे में था। तो उससे काफी प्रॉब्लम्स आती थी, सर्विस प्रॉपर लोगों को नहीं हो पाती थी, कई लोग नाराज हो जाते थे। सीसी लिमिट, कोई मशीनरी आनी है तो जो सीसी लोन लो और सीसी लिमिट बढ़ा लो, बैंक वाले भी तैयार थे, हमारे जो फाइनेंस के बंदे वो भी थे, ठीक है जी एक नई मशीन आ रही है, अगर आपकी सपोज 1 CR की मशीन है तो साथ में इतनी सीसी लिमिट और ऐड कर लो। तो बढ़ते 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 इट वाज वेरी ह्यूज बर्डन ऑन द कंपनी इटसेल्फ। तो उससे जो कैश फ्लो था वो काफी डिस्टर्ब होता था, तो प्रॉफिटेबिलिटी कम रहती थी। जो आप लोगों ने सिखाया हमें कि भी कैसे डबल सिस्टमेटिक डबल प्रॉफिटेबिलिटी करनी है। हालांकि हमारी जो जैसे अभी आपने आज सुबह ही बताया कि ग्राफ जो है पहले ऊपर जाती है, जैसे हमारी गई थी, उसके बाद फिर स्ट्रेट हो गई, फिर डिप आ गई, तो वो फेज हमारे फेज भी आया था। और अभी भी उसको आने के बाद क्या हुआ है कि जो प्रॉफिटेबिलिटी है, टर्नओवर नहीं बढ़ी है बट हमने प्रॉफिटेबिलिटी इंक्रीज की है काफी। तो पहले और मैम और क्या क्या प्रॉब्लम, और क्या क्या अभी अब कैन एवरीबॉडी हियर? यस मैम, और क्या क्या प्रॉब्लम आती थी आपको? जैसे इन्वेंट्री आप कह रहे हो पड़ी रहती थी, डिस्पैच का टाइम का हिसाब किताब थोड़ा 19-20 होता था। क्या हो रहा है, डिस्पैचेस बहुत जो थी, वो एक हमारा एक और स्टाफ का एक था, मैं नाम नहीं लेना चाहती, उसने अंदर अंदर से सारी गड़बड़ कर दी। गड़बड़ मतलब? शुरू कर दी, हमें पता ही नहीं चला अंदर अंदर से। गड़बड़ मतलब? छोड़ो, जो हो गया सो हो गया। ओके, और क्या प्रॉब्लम होती थी? प्रॉब्लम्स तो बहुत ज्यादा थी, हर तरफ से थी, अब मैं क्या एक्सप्लेन करूं आपको। अब जैसे डिस्पैचेस करनी है वो नहीं होती थी, प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन एरियाज में हमारी डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस पे सेमी मटेरियल जो था ना, सेमी फिनिश, वो पड़ा रह जाता था। अब मैं क्या क्या देखती, मैं मीटिंग्स करने लग गई, पर मीटिंग्स में होता था और वो प्लांट इंचार्ज आता था, मीटिंग करके उसके बाद लड़के लड़ाई फायर फाइटिंग करके वो गया, उसके बाद छुट्टी। और ऐसे सेम अकाउंट्स में प्रॉब्लम, अकाउंट्स वाले भी ये फिर आपस में लड़ने लग जाते थे, चलो लड़े, इनके पास जाती थी, इनके पास टाइम ही नहीं है, क्योंकि इनके पास पहले ही फायर फाइटिंग वाले सुबह से शुरू हो जाते थे, प्रोडक्शन वाले और ठीक है ना क्वालिटी वाले, उनसे इनको फुर्सत नहीं मिलती थी। बाकी एरियाज को मैं डील करती थी। नवीन आउट ऑफ पिक्चर था, पर जैसे ही सर आपका कोर्स ज्वाइन किया, इसको मैंने अपने ग्रिप में लेना स्टार्ट कर दिया। और आपने जो एफएमएस बनाए, ठीक है, सिस्टम्स जो आपके थे, आईएमएस बनाया, चेकलिस्ट बनाई सारी, और उसके अकॉर्डिंगली हमने काम करना स्टार्ट कर दिया, जिससे हमारे सारी कंपनी सिस्टमेटिक हो गई। और जो हमारे सीनियर्स थे वो सारे, वो जो थे वो सबका काम हमने ले लिया, बिल्कुल भी। अब वो सारे सीनियर्स को पता ही नहीं है कि कंपनी में क्या हो रहा है। तो अभी आपका अभी जो कंट्रोल, जैसे आप कह रहे हैं कंट्रोल पूरा का पूरा आपके हाथ में है? मेरे हाथ में, हाँ। ईएस कर रही है मेरे साथ। ये जो है आपके पास, आप दोनों के पास ये है, वो सारा काम वो संभाल रही है? बिल्कुल, सारा काम, पूरी फैक्ट्री तो वही चला रही है। हमारा जो एमडी ऑफिस बना हुआ है, एमडी ऑफिस में 2 ईएस है। हाँ, आपकी और हाँ 2 ईएस हैं और पीसीज हैं, पीसीज बहुत हैं, 8-10 पीसीज हैं, सेल कोऑर्डिनेटर्स हैं, सेल्स की जो सारी सेल्स को देख रही हैं, ठीक है ना, पीसी सारी परचेज सब डिपार्टमेंट्स को वो पूरी रिपोर्टिंग करती है मेरे को, हमें। आपको जब ये सारा सिस्टम चल रहा था तो आपको ये टेक्नोलॉजी वगैरह में जो क्या मुश्किल आई होगी या क्या हुआ, टेक्नोलॉजी आपने इम्प्लीमेंट कर दी? बिल्कुल, मैं आपके अकॉर्डिंगली चलती गई ना, फिर इसीलिए मेरे को मुश्किल, देखो मेरे को टेक्नोलॉजी में बहुत डिफरेंट, बहुत प्रॉब्लम्स आई, क्योंकि मेरे को अभी भी समझ नहीं आती ज्यादातर, तो क्योंकि हमारे तो ऊपर से सिर से ऊपर से निकलता है मेरे को। पर जो नवीन ने इसको सिस्टम बना करके इतनी मेहनत कर बड़ी करके, मेहनत करी इसने, होटल चेक इन करके और सिस्टम्स बना करके इम्प्लीमेंट किया है, उसके बाद शशि ने उसको इम्प्लीमेंट करवाया है, साथ साथ करती जाती। और जो टीम अब हमारी ईएस कंट्रोल कर रही है, या आपका इन्वेंट्री कंट्रोल हुआ है, और आपकी सेल्स ऑटोमेटिक प्रोडक्शन का सिस्टम्स बन गए हैं, तो दे आर रियली अमेजिंग। मतलब उसके बारे में बहुत कुछ जो भी कहें वो भी, हमारे पास कोई वर्ड्स नहीं है सर,
मेरे पास तो कोई वर्ड्स नहीं है, अब मैं इतनी रिलैक्स हूँ ना, जो पहले नहीं थी, बिल्कुल भी। अभी आप दोनों के दोनों रिलैक्स्ड हैं। अब सर को भी देख रहा हूँ सारे। कोविड हुआ है, देखिए कोविड की 2.5 वजह महीने से हो गए, 2.5 महीने से हम दोनों अंदर कैद है। कैद है, घर के More अंदर ही than है। I am 70 years, she is 67 years. तो हमारा जो सेक्टर 14 है फरीदाबाद, उसके बाहर उन्होंने गेट पे पैरा लगा रखा है कि जो 65 के ऊपर है वो जाने को अलाउड ही नहीं है। और एक नवीन आल्सो इज नॉट अलाउइंग अस टू गो आउट टू द फैक्ट्री। 2.5 महीने हो गए मेरे को फैक्ट्री गए, बट वी आर डेली डूइंग ऑल द मीटिंग्स, मंथली मीटिंग, डेली मीटिंग, सब हो रही है, ईएम पूरी। मीटिंग। मेरे यहाँ जो घर में कंप्यूटर लगा हुआ है, इससे सारा बैंक का काम ये मैं यहीं से कर रहा हूँ। और जो आपके सिस्टम हमने सीख करके इम्प्लीमेंट कर दिए हैं, और वी आर लक्की कि आपके कोविड के बीच में इतना अच्छा काम ऑटोमेटिक चल रहा है। हाँ, और हमारी एक भी फैक्ट्री एक दिन भी के लिए बंद नहीं हुई लकीली, एक भी बिकॉज बंद। हमारी कुछ एसेंशियल प्रोडक्ट थी, जैसे फूड पैकेजिंग और मेडिकल पैकेजिंग है। तो हमारा भगवान की दया से एक दिन भी हमारा शट डाउन नहीं हुआ, और तब से ही हमारा काम चल रहा है। ठीक है, अब लेबर काफी चली गई है, प्रॉब्लम्स काफी आ रही हैं बीच बीच में, बट लकीली वी आर एबल टू मैनेज 50, 60, 70% ऑफ द प्रोडक्शन, और वो घर बैठ के मैनेज हो घर रहा है बैठ के। और सारी दोनों ईएस मेरे को डेली फैक्ट्री की सारे सिस्टम्स की रिपोर्ट मेरे सब। वो पास भी आ हो जाती घर है, से काम कर रही घर है। से काम कर रही हैं। तो वो भी अभी घर आपका सारा वर्क फ्रॉम होम चल रहा है और सारा कंट्रोल आपके पास है। पूरा वर्क कंट्रोल फ्रॉम होम हाथ चल में। रहा है, ईएस भी घर से काम कर रही है, पीसी भी घर से काम कर रही है, और सीआरएम नवीन जाता है 3-4 दिन जाता है फॉर हाफ डे, और जाकर के जस्ट टू एनकरेज द टीम, ताकि वो ऐसा ना फील करें कि भी सारे कोई आई नहीं रहा। एनीहाउ इट वाज जस्ट ए मोटिवेशनल मूव कि उसके हिसाब से। कोविड से पहले जो सिचुएशन था, फरवरी में, जनवरी फरवरी में जब आपका ऑटो पायलट लग गया, तो उसके बाद आपकी इन्वॉल्वमेंट रेगुलर डेली ऑपरेशंस में हफ्ते में कितने दिन थी? पहले तो बहुत डेली जाते थे, अब नहीं है ना सर। कोविड से पहले, कोविड से पहले नहीं Sorry, issues मतलब due to technology. नो प्रॉब्लम नवीन, वेलकम बैक। Okay. मैं कह रहा हूँ जनवरी फरवरी में, सो नवीन, जनवरी Yeah. फरवरी में बाय बिफोर कोविड आप तीनों की ऑपरेशंस में कितनी इन्वॉल्वमेंट रह गई थी? बहुत कम। So before COVID, operations की involvement, honestly, मुझे लगता था बहुत ज्यादा अभी भी है, because I used to see my parents still going, और मैं बोलता था आप क्यों जा रहे हो, सब काम चल रहा है ऑटोमेटिकली। कहते हैं हम घर में क्या करें, बोर होते हैं। मैंने कहा ठीक है जाओ, बट आप स्टाफ गेट यूज्ड टू इट। आप जा रहे हो तो फिर क्या ऑटो पायलट हुआ, ऑनेस्टली। ट्रू टेस्ट आया जब कोविड हो गया, लास्ट 2.5 महीने से तो गए नहीं वो ऑफिस, and we didn't stop for a single day during COVID time. Fortunately, our industry is such that we were, in fact, before getting into that, even the COVID के time जो सारा जो challenge था, your program really helped me personally, because there are so many powerful tools I learned from you and during this program, how to do crisis में कैसे react करना है। Typical example मैं देता हूँ, आप बोलते थे workshops में, don't waste your time on news, मीडिया को ब्लॉक रखो। और ये प्रैक्टिस मैंने लास्ट ईयर से स्टार्ट कर दी थी। न्यूज देखना बंद कर दिया था, देखता था तो खाली पता है अब मैंने आधा घंटा या 15 मिनट न्यूज देखनी है, और पता लग रहा है कि ये न्यूज का होल पर्पस ही है कि आपकी टेंशन डाइवर्ट करने का। ये क्लिक कर दो लिंक, ये न्यूज देख लो, तो टीवी देखना बंद कर दिया, न्यूज देखना बंद कर दिया था। प्री कोविड जनवरी से आई रियलाइज की सिचुएशन गोइंग टू गेट वर्स, और न्यूज देखते रहोगे तो जस्ट गोना अफेक्ट योर माइंड इन अ वेरी नेगेटिव मैनर। फ्राइडे तक, फरवरी तक आई न्यू सिचुएशन विल गो बैड टू वर्स। मैं इटली गया था ड्यूरिंग फरवरी एंड पे, आई सॉ थिंग्स देयर व्हेन इट वाज वेरी नॉर्मल। 2 वीक्स के बाद देखा इटली वाज इन लॉकडाउन, आई न्यू दिस इज कमिंग टू इंडिया, न्यूज देखनी बंद कर दी। आपकी सारी बातें उस वक्त माइंड में आनी शुरू होगी कि क्या क्या होने वाला है, क्या क्या हो सकता है। आई स्पोक टू यू ऑल्सो ड्यूरिंग दैट टाइम, यू ऑल्सो गिव अ वेरी गुड लाइन्स एंड आई स्टिल रिमेंबर दैट टाइम। आई न्यू कि मेरी इंडस्ट्री को परमिशन मिल जाएगी to work, but I also knew कि इसको करना आसान नहीं होगा, सरकारी लोगों से काम करना। Just before we get into COVID, just 1 second, I'm sorry I'm cutting you, Yeah. but before COVID ये सारा जब ऑटो पायलट हो गया, तो ऑटो पायलट के बाद आपको क्या रिजल्ट्स मिले, और what were the results that you got, how was working before, in February what was the working, then we'll come to COVID. Let me share with you a slide, that would be best. Just a minute. You can see the screen? Yes. अब स्क्रीन दिख रहा है सबको?
एक मिनट, स्क्रीन नहीं दिख रहा, एक मिनट, स्क्रीन दिख रहा है गाइस? कैन यू सी द स्क्रीन? Okay, you'll see it, otherwise he'll also tell you. Great. So Can you see the screen now? हाँ, अब वापस एक बार स्क्रीन वापस स्क्रीन शेयर दिख रहा है, मेरे को तो दिख रहा है, मेरे को दिख रहा है, सबको दिख रहा है, बताइए। Okay, so just to tell you that our system was in such a way that we had one small ERP in place and we had a finance person and one or two IT people. ये हमारा overall system होता था पहले। हमने staff hire किया just the way you guided, executive assistants, जिससे कि हम लोग personally free हो गए। आपने ना एक सेकंड, आप लोगों ने एक सेकंड, आपने क्या किया हुआ है, जिसको स्क्रीन नहीं दिख रहा वो व्यू ऑप्शंस पे जाइए, आपने शायद वो किया हुआ है पिन टू स्क्रीन, तो जो स्पीकर है सिर्फ वही दिख रहा है। कैन द रेस्ट ऑफ यू सी इट? नो, आपको नहीं कह रहा मैं नवीन, अच्छा, कैन पार्टिसिपेंट से बात कर रहा हूँ, आप देख सकते हो ना? एक मिनट, कैन मोस्ट ऑफ यू सी इट? So if even one person can see it like I can see it, everybody will get the same signal. आपके सिग्नल में थोड़ा हुआ है, चलिए let's move ahead. No problem, आप सुनते रहिए. So we had a ERP in place, then we had some finance people और कुछ IT के लोग, and so हमने staff का तरीका change किया. We got some executive assistants, some PCs, process controllers, जैसे आपने guide किया. हम लोगों ने systems बनाने शुरू करें, जो भी आप सब लोग सीखेंगे, FMSs, checklists, IMS, PMS, which is production management systems. फिर most important tool, which is hiring and training some assistants, जो कि लोग काम करवाएंगे through factories. तो left side जो आप देख रहे हैं कि अभी इनको समझ में नहीं आएगा, नहीं समझ आएगा, मैं बस बोल रहा हूँ ये सब हमने सिस्टम सेटअप किए, जैसे कि राहुल जी ने गाइड किया। MIS वेरी इंपॉर्टेंट पावरफुल टूल। ये सब रोल्स जो हमारे एक GM करता था, ये सारे काम उसको नए रोल दे दिए, नई बिजनेस डेवलपमेंट के, प्रोसेस टूल्स के, नई प्रोडक्शन के, नई इनोवेशन के, नई आइडिया जनरेशन के, ये सारे काम उनको दे दिए। तो सारे सीनियर स्टाफ को आपने जो रोल दिया, अब दिया न्यू बिजनेस ग्रोथ, प्रोसेस इंप्रूवमेंट, प्रॉब्लम सॉल्विंग, न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट, इनोवेशन, न्यू एप्लीकेशन डेवलपमेंट, न्यू आइडिया जनरेशन, एफिशिएंसी, न्यू टेक्नोलॉजी। यस, और उनको डे टू डे चिक चिक से निकाल दिया। तो सारा काम आपने उनको ऑपरेशन से बिल्कुल ही हटा दिया और उनको सिर्फ स्ट्रेटेजी में डाल दिया और प्रॉब्लम सॉल्विंग में। तो अब सारे सीनियर्स का ऑपरेशन में कोई लेना देना नहीं, दे आर नॉट वर्किंग ऑन ऑपरेशंस, और दे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू वर्क ऑन ऑपरेशंस। सबकी आदतें चेंज नहीं होती है, बट इट टेक्स टाइम, बट यस दे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू वर्क ऑन ऑपरेशंस, और वो फ्री भी हो गए। इनकी आदत चेंज करने के लिए मैं सीनियर स्टाफ को 2 बार, एक बार जर्मनी और एक बार चाइना, वहां पर ट्रेड फेयर में लेके गया, दोनों को घुमाने के लिए, जस्ट लेट्स गो आउट एंड सी द वर्ल्ड। यहाँ काम ऑटोमेटिक पे डाल दिया था उस टाइम, और हम तीनों जने, मैं और 2 हमारे जो सीनियर हैं, तीनों जने हम जो है एक बार चाइना ट्रेड फेयर देखने गए और एक बार हम जर्मनी के फेयर देखने गए। तो 3-3, 4-4 दिन वहां देख कर क्या है, न्यू मिशनरी, न्यू टेक्नोलॉजी टू अलाइन देम आल्सो। करेक्ट। उनका सारा काम दिया है जूनियर स्टाफ को, जो कि सारी डे टू डे ऑपरेशंस करे थ्रू सिस्टम। तो सिस्टम बताता है क्या प्रिंट करना है, सिस्टम बताता है क्या प्रोड्यूस करना है, सिस्टम बताता है कि किसको डिस्पैच करना पहले, सिस्टम बताता है कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और उसको फॉलो करते हैं जूनियर स्टाफ, जो कि हमने सारा आपके प्रोग्राम में बनाया है। तो आप सीनियर्स जो हैं, इनकी क्या सैलरी होती है? some between 1 lakhs to 3 lakhs per month approximately हमारे सीनियर्स लेवल। 1 लाख से 3 लाख रुपए महीने की इनकी तनख्वाह होती है। अब इनका ये सारा का सारा काम जो ये लोग पहले करते थे ऑपरेशंस में, अब जो स्टाफ कर रहा है उनकी क्या तनख्वाह है? Right from 12,000 rupees till about 20,000 rupees। 12,000 से 20,000 रुपए का ये जो स्टाफ, जूनियर स्टाफ रखा है, ये सारा का सारा दे हैव टेकन ओवर द वर्क फ्रॉम ऑल द सीनियर्स, एंड सीनियर्स आज की तारीख में रिप्लेसेबल हैं। 12 से 30-35 तक है। सीनियर को रिप्लेस करना इज वेरी डिफिकल्ट। आपको पता है दे आर वेरी ओल्ड इन द सेंस कि आप नई इनोवेशन, नई डेवलपमेंट के लिए, दे आर ट्रबल शूटर्स। नहीं, मैं कह रहा हूँ रिप्लेसेबल इन द सेंस कि अगर कोई ब्लैकमेल करता है या बोलता है कि नहीं जी मैं ये नहीं वो जी, आज की डेट में मैंने सीनियर्स को बोला हुआ है आपको फैक्ट्री आना जरूरी नहीं है, इस कोविड टाइम आप घर बैठो। आज की डेट में दे आर कमिंग ट्वाइस अ वीक, समटाइम्स थ्राइस अ वीक, जब उनका मन करता है। दे आर नॉट एक्सपेक्टेड टू कम ड्यूरिंग कोविड टाइम्स। आई थिंक दिस आंसर्स द क्वेश्चन।
So मतलब they are not expected to come to the office. वो हफ्ते में एक दिन दो दिन आए नहीं हाँ नहीं, जी। कोई फर्क नहीं पड़ता, बिजनेस उनके बिना चलेगा, ये सारे सीनियर्स के बिना चल रहा है लास्ट 2 महीने से। मैंने बोला है कि मैं भी नहीं आ रहा हूँ कंपनी, कोविड टाइम है, आप भी मत आओ, मत आओ। जो फैक्ट्री में मशीन चला रहा है और जो करवाने वाले लोग तो घर बैठे हैं, क्योंकि करवाने वाले दिस इज ऑल ऑनलाइन। ये सारा जो जूनियर सारा सिस्टम ऑनलाइन है, और ये सारा ऑनलाइन आपने गूगल शीट्स पे कर दिया। यस, लास्ट 2 महीने पे ये सारे जो स्टाफ, एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट्स, पीसी जो ये फैक्ट्री में काम करवा रहे हैं, दे आर गेटिंग इट डन फ्रॉम होम। वो फैक्ट्रीज नहीं जा रहे, सीनियर स्टाफ नहीं जा रहे, उनको बोला है कि जो एक्चुअल मशीन चला रहे हैं उनको रहने दो वहां पर। तो सिर्फ जो मशीन चला रहा है वो फैक्ट्री जा रहा है, और उसको पूरा रन करने के लिए ऑनलाइन सिस्टम कर दिया है, और ये लोग अपने घर से बैठ के पूरा कंट्रोल कर रहे हैं 12,000 से 20,000। सो कोविड फॉर मी वाज अ ह्यूज अपॉर्चुनिटी टू टेस्ट द सिस्टम। मैंने कहा जो हमने इम्प्लीमेंट किया है उसका टॉर्चर टेस्ट है ये कोविड टाइम, और बोल दिया कि देखो जी, लोग आ नहीं सकते, कंपनीज, लोग फैक्ट्री जा नहीं सकते। राहुल जी मैं क्या पॉइंट ऐड करूंगा यहाँ पर, नवीन ने ना मैनिफेस्टेशन करी हुई है। अच्छा, हम दोनों तो फैक्ट्री छोड़ते नहीं थे, हमेशा बैठे रहते थे, काम नहीं है तब भी बैठे रहो, देखते रहो क्या हो रहा है। तो वी वर जस्ट एडिक्टेड टू गोइंग टू द ऑफिस। अभी भी खुल जाए तो हम तो जाके बैठना चाहेंगे, पर हमारी कोई एज है या जो शुरू से लेके किया है, पर जो नवीन की मैनिफेस्टेशन थी ना, दैट हैज वर्कड। So last 2.5 months से my parents have not gone to operations. I go today 2 times a week, वो भी half day, just to लोगों को मोरल बूस्ट करने के लिए। सीनियर्स को बोला है कि आप मत आओ, आपकी जरूरत नहीं है, आपको आना है आओ, बट दे यू आर नॉट एक्सपेक्टेड टू कम, बिकॉज जो काम आप वो क्या कर रहे हैं, काम लोगों को, टीम को मोटिवेट करना, बकअप करना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, दैट इज व्हाट दे आर एक्सपेक्टेड टू डू। बस कोई मुश्किल आती है तो वो हैंडल कर लेते हैं, बाकी सब उनको ऑपरेशंस का उनका कोई काम रहा नहीं। हाँ जी, बिकॉज कोविड टाइम में हमने उनको बोला, हम लोग उन वर्कर्स के लिए रिस्क है, क्यों जाए, करो ना काम रिमोटली। ठीक है जी, दैट इज व्हाट वी डिड। ग्रेट, सो लेट्स सी सम मोर रिजल्ट्स। या सो दिस इज आवर ओवरऑल सिस्टम, जो अभी आप सब लोग बनाएंगे। आई डोंट वांट टू गेट इनटू डिटेल्स, इट विल कंफ्यूज यू। दीज आर ऑल द सिस्टम्स की स्लाइड्स हमने क्या क्या बनाई, अभी आपको समझ नहीं आएंगी बस सब टीम मेंबर्स को, बट दिस विल ऑल हेल्प यू टू पुट ऑन ऑटो पायलट। तो आपने FMS, so just I'll just go through this fast. आपने 37 FMS, एक PMS, 50 चेकलिस्ट, 42 IMS, 9 रिपोर्ट्स और एक डेलीगेशन शीट पे ही पूरी कंपनी चल रही है, और ये सारी आपके पास MIS आती है हर बार। Yes, so we carried the weekly executive meetings, जो भी आप सबको सिखाएंगे भी। EM जो करते हो आप, उस पे ये सारा काम चल पड़ता है। हाँ, तो पहले हमारी EM होती थी, हम बोर्ड रूम में बैठते थे, एक पीछे बड़ा सा स्क्रीन होता था जिसमें डिस्प्ले होता था। वी यूज्ड टू कॉल पीपल वन बाय वन कि ये आपका स्कोर आ रहा है, ये आपका स्कोर आ रहा है। और एक कोविड टाइम हमने ये वर्चुअली कर दिया। राइट, एक मीटिंग कितने मिनट की होती है? With 1%, 2-2.5-3 महीना, 3 मिनट, sometimes 5 minutes, not more than that। 2-2.5-3 मिनट में आप एक बंदे की पूरी हफ्ते की मीटिंग ले लेते हो। हाँ जी, स्कोर उसका आ जाता है, यू दिस इज पर्सन, दिस इज आपका स्कोर है, आप आपको समझ आ गया, आप निकलो आगे नेक्स्ट पर्सन। तो एक सारों से लाइन से लग जाती थी ऑफिस के सामने, बारी लोगों को बुलाया जा रहा है। पहले वो लाइन बहुत लंबी होती थी, कट शॉर्ट होकर के अभी खाली 3 या 4 लोग रह गए, दैट्स इट। बाकी आप सबके स्कोर उनको पहुंच जाते हैं बाय ईमेल्स, वो हमारी ईएस दे सेंड अक्रॉस। एंड पहले लंबी लाइन क्यों थी और अभी छोटी क्यों हो गई? स्कोर्स बहुत खराब होते थे सबके, सबको पता नहीं था कि क्या हो रहा है, स्कोरिंग हमें बुलाया क्यों जा रहा है। अलाइनमेंट के इश्यूज भी होते थे, और स्कोर्स वाले टोटली आउट, मतलब कि कोई कंपैरिजन ही नहीं था जो आज की डेट में स्कोर्स आ रहे थे, पहले बहुत खराब स्कोर्स थे सारे। यस। और अब 3-4 लोग क्यों रह गए? क्योंकि बाकी सबके स्कोर, मतलब सबके स्कोर्स ठीक हो गए, सब चीजें वर ऑन ट्रैक। दिस आई एम टॉकिंग अबाउट प्री कोविड आल्सो, थिंग्स वर ऑन ट्रैक, सो वी वर नॉट फॉलोइंग। कोविड की बात कर रहा हूं, कोविड पे हम आएंगे। तो अब आप कह रहे हो सबके स्कोर्स ठीक हो गए, तो अब उनको आने की जरूरत नहीं, उनकी मीटिंग लेने की भी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि उनके स्कोर मतलब 100% है। दैट्स राइट, वेरी नाइस। 100% और 99% और 98%, 95%, 90%, मतलब अगर उसका सिर्फ 10% काम रह गया तो उससे तो कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। हमने 5% रूल बनाया था, 10% इज टू बिग अ नंबर। अगर 5% काम रह गया है तो यू नॉट एक्सपेक्टेड टू कॉल, अगर 5% से ऊपर है देन यू विल हैव टू कम। और उसको पता है कि अगर स्कोर खराब हो गया तो मैं आऊंगा जी, मुझे आके फिर अपनी शक्ल दिखानी पड़ेगी, व्हिच नोबडी लाइक्स टू सी दैट। वेरी नाइस। करते रिड्यूस्ड ड्रामेटिकली। वेरी नाइस, नेक्स्ट। So this is how the delegation sheets were score changed. During the workshop 1 week, we had
15 delegation points to different people. Slowly ये भी reduce होते गए. लोगों को इशारा पता लग गया कि अगर ये delegation sheet पे चले गया तो हमारे पीछे EAs will start calling us again and again and मतलब let me decode this for everybody. शुरू में week 1 जब उन्होंने कोर्स शुरू किया तो उसके बाद उस समय करीब 15 पॉइंट्स रहते थे लाल में सारे लोगों के. फिर वीक 25 तक 7 रह गए और वीक 50 तक 2 रह गए. वेरी नाइस. नेक्स्ट. Then also we have a system of किसकी number of positive and negative scoring जो हमने बताया था -5% से ऊपर. तो 73% लोग जो लाइन लगती थी, you can see here on the numbers कि week 6 तक 73% लोगों की 95 से ऊपर स्कोर खराब आता था. मतलब they were like 5% से ज्यादा काम पेंडिंग होते थे. As things progress, things improve dramatically. That by week 50 this dropped to 40%, and this was the data which I presented to you last year, if you remember. Yes. उसके बाद तो this has even dropped down to 10%, 5%. Sometimes लगता था कि ये हम कर ही क्यों रहे हैं. That is how the things. अभी आप ये आप कह रहे हो ये तो पिछले साल के स्कोर्स हैं. हाँ जी, because I didn't get time to prepare. आपने मुझे जल्दी बुला लिया ना. ठीक है. तो लास्ट ईयर स्कोर. यस राइट. सो वो ये कह रहे हैं कि भी पिछले साल की प्रेजेंटेशन थी उनकी. अभी इसमें दिसंबर बहुत फर्क. दिसंबर 2019 का ये प्रेजेंटेशन है. तो ये रिजल्ट्स इनको मिले थे जून 2019 में कोर्स खत्म किया. उसके बाद दिसंबर 2019 तक ऐसे रिजल्ट्स थे कि 40% लोग ऐसे थे जिनका स्कोर -5% से ऊपर था. और मतलब 95 उनका स्कोर 90-95%, 80-85, 90% होगा कि काम हो गया. 10-20 रह जाता था. 60% लोग ऐसे थे पूरी कंपनी में जिनका स्कोर 95% ये था कि 95% सारे काम खत्म हो गए. 95% सारे काम खत्म हो गए. ग्रेट. नेक्स्ट. Then we made a complete automated production system. जो आज मैं घुसना नहीं चाहूंगा. It will confuse lot of people. But idea था कि क्योंकि मैंने आपको शेयर किया था कि जब ज्वाइन किया था कोर्स, पहले एक चीज क्लियर कर लें क्योंकि मैम और सर तो गूगल उनको वो ज्यादा घुसे नहीं. मगर जब आपने कोर्स ज्वाइन किया था तो आपको गूगल आता था? मतलब गूगल एक्सेल पता था. गूगल शीट का मुझे जी भी नहीं पता था. सब कुछ आपसे सीखा. व्हाट इज गूगल शीट की पावर, गूगल शीट की क्या क्या प्रोग्राम कर सकते हो, क्या क्या उसमें कैपेबिलिटीज है. और ये सारा का सारा सिस्टम आपने और डीएमई ने मिलके बनाया? हम दोनों ने इकट्ठे मिलके बनाया. डीएमई को भी नहीं आता था, उसको भी साथ वर्कशॉप करवाई आपके साथ, उसको भी ट्रेन कराया, उसको भी सिखाया. 2 डीएमईज मैंने हायर किए थे. मतलब मेरे पुराने ईआरपी के चल रहे थे बट उनको प्रोग्रामिंग का कुछ भी नहीं पता था. गूगल शीट्स पे क्या होता है, क्या पावर है. आवर फैक्ट्री वाज ऑफलाइन मतलब कि ईआरपी है और पेपर वर्क, दैट्स इट. ऑनलाइन सिस्टम को कॉन्सेप्ट ही नहीं पता था. एवरीथिंग वाज ऑफलाइन और सब कागज पे होता था और ईआरपी में डेटा डंपिंग होती थी. डंपिंग से कुछ क्या रिजल्ट निकल रहा है. एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूंगा. थैंक गॉड कि हमारा ईआरपी इंप्लीमेंट हो चुका था, क्योंकि ईआरपी इंप्लीमेंट करने के लिए भी हमें 2-2.5 साल 3 साल लग गए थे. इस कोर्स को करने से पहले हमारा ईआरपी थैंकफुली इंप्लीमेंटेड था. उसकी वजह से हमें बहुत हेल्प मिली इसको. लेकिन ईआरपी से रिजल्ट नहीं निकलते थे. क्या हुआ ये नहीं पता था. ईआरपी डेटाबेस बन गया था, सारा डेटा उसमें जा रहा था, लेकिन हुआ क्या उससे नतीजा, एंड रिजल्ट, स्कोर क्या निकला, एमआईएस क्या निकली, वो नहीं निकल रही थी. और इंटेलिजेंस नहीं हो रही थी उसमें. तो जस्ट बिकेम ए डेटा डंपिंग. तो हमने क्या किया, इन गूगल शीट्स और ईआरपी का डेटा वहां से लेना शुरू कर दिया. एंड प्रैक्टिकली उससे हमें बहुत पावर्स मिली कि यूजिंग पावर ऑफ गूगल शीट्स. डेटा या तो ईआरपी से है जो कि लोग ईआरपी में एंटर कर रहे हैं, और मैन्युअली डायरेक्टली गूगल शीट पे डाले. कई जगहों पे हमने डायरेक्टली गूगल शीट्स पे डलवाया, कहीं पर हमने वाया ईआरपी पे शिफ्ट कर दिया. तो जो एक इंटेलिजेंस थी कि आज मशीन पे कौन सा जॉब चलना है, जो पहले एक प्रोडक्शन मैनेजर डिसाइड करता था, टुडे ये गूगल शीट डिसाइड करती है. एंड दिस वाज एन अमेजिंग टूल जो मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ सबको, कि प्रोडक्शन में क्या बनना है वो गूगल शीट बता रही है और जूनियर स्टाफ उसको फॉलो कर रहा है. और ये साइकिल कंटिन्यूअसली चल गया और आज की डेट में भी चल रहा है. इट हैज टेस्टेड, इट वाज रनिंग वेरी वेल ड्यूरिंग कोविड टाइम आल्सो, व्हिच वाज अ ट्रू टॉर्चर टेस्ट. वेरी नाइस. नेक्स्ट. तो ये आप देख रहे हैं कि हाउ ड्यूरिंग दिस प्रोडक्शन टाइम दिस पावरफुल टूल जो हमने डेवलप किया था फॉर प्रोडक्शन प्लानिंग में, पहले 55 जॉब्स वर आउट ऑफ, जो कि प्रोडक्शन के हिसाब से नहीं बन रहे थे. तो हमने इसमें मॉनिटरिंग कर दिया कि अगर पीएमएस कह रहा है कि आपने ये जॉब करना है और ये होना चाहिए इसके हिसाब से,
तो पहले 55 जॉब्स आउट ऑफ 60 आपके इस पर्टिकुलर वीक में नहीं हो रहे थे, विच ड्रॉप्स टू 16। आज की डेट में वो क्लोज टू 5 और 6 जॉब है। तो सारे लोग, मतलब दिस वाज अ ट्रू टेस्ट के सारे लोग गूगल शीट्स के हिसाब से काम कर रहे हैं। दिस वाज लाइक जस्ट टू टेल यू इन ब्रीफली, वेरी जब नाइस। लोग सिस्टम के हिसाब से काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली आपके सारे जनरल मैनेजर आउट एंड पीपल आर आउट एंड लोग अपने आप काम कर रहे हैं ना। ग्रेट। और पहले क्या होता था? पहले तो कोई सिस्टम ही नहीं होता था। क्या पहले होता जो चलाता था, मेरा जॉब पहले प्रिंट कर दो, जॉब पहले प्रोसेस कर दो, वो होता था, यू नो, दैट्स हाउ द सिस्टम वाज। जो जोर से चिल्लाता था कि भाई मेरा काम कर दे, मेरा क्लाइंट चिल्ला रहा है, तो उसका काम हाँ जी, पहले होता था और हाँ बाकी जी। पीछे और उनमें से मैं भी होता था, क्योंकि जिसका फोन मेरे को आता था क्लाइंट का, मैं भी बोलता था प्रोडक्शन मैनेजर्स को, ये कर दो पहले, वरना तुम्हारी नौकरी जाएगी, लिटरली। और इसको So that was our way of working. एक्सीलेंट। नेक्स्ट। Bottlenecks, we also qualify कि different production stages में कहाँ पे bottlenecks है. This was on the left hand side, week 40 में हमारा ये bottleneck था. And then we see dramatic improvements after a few weeks only. Then we started the systems कि कैसे different जगहों पे जो inventories होती थी, जहाँ काम फंसा रहता था, वो drop हो गया. This is the number of jobs running in the factories. जॉब मींस कि एक जॉब, हम ट्यूब्स बनाते हैं फॉर एग्जांपल, ट्यूब्स फॉर पहले कॉस्मेटिक्स। मैं ये डिटेल कर देता हूँ। तो पहले का यह हिसाब किताब है कि कितने काम फंसे रहते थे, अब उसके बाद अब कितने काम फंसते हैं टोटल एग्जैक्ट पूरी फैक्ट्री में। 700 लोगों वाले में 700 लोग हैं जो काम कर रहे हैं, और उसमें ये दिखा रहा है कि 21 काम प्रिंटिंग में क्यू में है, और आफ्टर प्रिंटिंग 60 काम है, और आफ्टर ट्यूबिंग 9 है, और ये है। एंड दिस इज विद 700 पीपल वर्किंग इन द फैक्ट्री। ग्रेट। नेक्स्ट। एंड ऑल्सो ये सब करने से मैंने कोई कैपेसिटी ऐड नहीं करी, दिस इज विद द सेम कैपेसिटीज। ये सेम कैपेसिटी से ये सारा काम हो रहा है। यस, और ये सारा एफिशिएंसीज इंप्रूव, माय इन्वेंटरीज वेंट डाउन, इन्वेंटरीज गई तो लिक्विडिटी आई सिस्टम में, इट हैड माइंड बॉगलिंग इफेक्ट्स। हाँ ठीक है, कर देंगे वो तो अभी हमने करना है ना काम कल इसी। प्रियंका होगी, म्यूट हो गया। हाँ, म्यूट कर लो। Then we also started tracking कि you know कितने आपके jobs non-TIF किसको हम कहते हैं कि not in time and in full। ये matrix is a very powerful matrix to see आपकी factories में कितने आपके jobs time पे हुए और complete हुए, you know। तो पहले week 30 में जब हमने tracking start करी, we realized हमारे 50% jobs delayed थे और on time नहीं थे। By week 50th it dropped to 15, you know। तो मतलब During पहले आपका 50% ऑन टाइम डिलीवरी था, नहीं था, हाँ मतलब था, हाँ, yes you can see it this way, yes। 50% ऑन टाइम होता था, और अब आपका 85% ऑन टाइम हो गया था वीक 50 तक। That's right, वेरी नाइस। नेक्स्ट। that's right। This is our CC limits जो मैंने आपको शेयर किया था, that we were always aligned। हमने जून में आपका ये वर्कशॉप मतलब आपकी हमने स्टार्ट करी थी 2018 में वर्कशॉप। बिफोर दिस प्रोग्राम दिस इज हाउ द नंबर्स वर। Our CC limited utilization with banks were close to around 50 to 60%। तो हम हमेशा उधारी में रहते थे, लोन्स भी थे और वर्किंग कैपिटल यूटिलाइजेशन भी was quite high। Then we gradually reduced it during your program and then we became positive। So we had excess thing। As I mentioned ये data till December है, उसके बाद मैंने अपडेट नहीं किया। But एक amazing power और एक confidence जब कोविड आया था, that you don't have debt, that you are not under the bank's thing, you know। वो एक amazing जो power और एक तो रात को नींद आती थी ना कि आज मेरी फैक्ट्री बंद भी हो जाए। See, we were given permissions to work in the first week of COVID, second week of COVID, but any time it was a threat कि मेरी फैक्ट्री बंद कर देगी गवर्नमेंट। कभी भी आके they can seal the factories and we can go down and sit like rest of the world at home and doing nothing। वो जो threat in the mind था ना, that was a huge amount of threat for us। बट एक जो बैक एंड लाइक था ना कि मेरे पास बैंक का बर्डन नहीं है, दैट वाज अ ह्यूज पावर एंड दैट आई वुड कंप्लीटली ओ टू यू ऑन दिस प्रोग्राम। बिकॉज एक तो माइंडसेट चेंज हुआ एंड देन वी स्टार्टेड एक्टिंग ऑन दैट माइंडसेट। वी स्टार्टेड लुकिंग एट द नंबर्स, दैट हैज एन अमेजिंग पावर। लुकिंग एट मेरा आज हफ्ते में क्या खाते में आया, लिटरली क्या मेरे पास पैसे आए, एक्चुअल नेट पैसे। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट सेल या प्रॉफिट, एक्चुअल कैश क्या आया कंपनी में, बैंक्स में। तो बैंक बैलेंसेस हफ्ते में देखना शुरू किया, दैट इटसेल्फ हैज अ ह्यूज अमाउंट ऑफ पावर। ऑसम। और ये नहीं देखते थे। सारा फाइनेंशियल सिस्टम आपने जो लगाया उसकी वजह से पूरा कंट्रोल में 1 मिनट में आ गया। जो लोगों को ये चैट नहीं दिख पा रही, स्क्रीन नहीं दिख पा रहा, मैं जरा पढ़ देता हूँ।
2018 में इनका अप्रैल में सीसी यूटिलाइजेशन 20%, 60%, 50%, 67%, 58% ऐसे चल रहा था। 2019 में सीसी यूटिलाइजेशन 19%, अप्रैल में 19%, मई में 27%, जून में 3% और जुलाई में पॉजिटिव हो गया 55%। मतलब 55% पॉजिटिव क्या होता है? मतलब कि बैंक में एक्स्ट्रा पैसे पड़े। बैंक में एक्स्ट्रा पैसे पड़े हैं। जून में इनका कोर्स खत्म हुआ है 2019 में। जून 2019 में 3% सीसी यूटिलाइजेशन आ गई थी 50-60% से, और फिर 55% बैंक में पैसे पड़े हैं, 32%, सितंबर में 40%, अक्टूबर में 48%, नवंबर में 44%। उसके आगे इन्होंने बना नहीं रखा क्योंकि ये दिसंबर में इन्होंने प्रेजेंटेशन दी थी। नेक्स्ट, मतलब मैंने से 44% मींस कि अगर मेरी सीसी फॉर एग्जांपल इज 1 CR, जो मेरी सैंक्शन लिमिट है, तो उसमें 44 lakhs एक्स्ट्रा पड़े। आई एम जस्ट टेलिंग यू दैट परसेंटेज वाइज एक्स्ट्रा दैट वी हैव पॉजिटिव इन द बैंक्स थैंक्स टू ऑल द थिंग्स दैट वी इंप्लीमेंटेड। और ये सारा का सारा जो सीसी लिमिट आपका गायब हुआ, वो ऐसे गायब हुआ क्योंकि ऑब्वियसली मस्ट हैव बीन द प्रॉफिट्स दैट यू मेड ड्यूरिंग द प्रोग्राम। राहुल जी, मैं बोल रहा हूँ ना, प्रॉफिट्स क्या होते हैं? प्रॉफिट्स आप अकाउंटेंट से बोलो जी लास्ट महीने का प्रॉफिट क्या होगा, क्या आया, वो बोलेगा जी आपसे, आप बताओ जी क्या दिखाना चाहते हो। लिटरली वो स्टॉक मैनिपुलेशन करके आपको प्रॉफिट ला देगा, वॉट एवर यू वांट टू डू। एक्चुअल प्रॉफिट तो वो है जो बैंक में आया, कैश इन बैंक, दैट इज अ रियल प्रॉफिट। चैप्टर क्लोज। लवली लवली। आई एम नॉट अ फाइनेंस पर्सन, मुझे बैलेंस शीट्स और ये सारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं देखनी आती ऑनेस्टली, बट जिस तरीके से देखनी आती वो भी आपसे सीखी। और नेट रिजल्ट क्या चाहिए? प्रॉफिट्स इन हैंड्स, कैश इन हैंड, वही चीज है, रेस्ट ऑल चीज है। आज प्रॉफिटेबल यूनिट जो थे सो कॉल्ड, लॉकडाउन खत्म हुआ जो कंपनीज का बैंड बजा हुआ है, बिकॉज दे डिडंट हैव कैश फ्लोज, उनका कोई फोकस नहीं था कैश फ्लोज पे। तो प्रॉफिट्स का क्या चार्ट डालेंगे? इफ द बिजनेस शट्स डाउन एंड यू हैव एन ह्यूज अमाउंट ऑफ प्रॉफिट बट जीरो कैश, क्या करेंगे उसका? क्या? तो रियल कैश इज द रियल प्रॉफिट, सिंपल। तो आपने you've gone from about -50-60% to +40% from the time you started the course till this time. That's true. That is true, sir. Wonderful. और जब आपने कोर्स शुरू किया था तो कितना डेट होगा? वो मैं शेयर नहीं करना चाहूंगा, but it was quite amount, big amount. Next. So this is IMS. IMS में भी inventory management हुई, breakdowns reduced dramatically. एक सेकेंड, so breakdown management, तो आपका शुरू में 72 breakdowns होते थे, अब वो 4 पे आ गए हैं। That's right. और टाइम हमने ट्रैक करनी शुरू कर दी, that amount of breakdowns जल्दी क्लोज होने लग गए। You have basically started tracking on the machines amount of breakdowns. पहले तो हिसाब ही नहीं होता था कि क्यों हुआ, किस लिए हुआ, थोड़ा every week है। बाकी सारे सिस्टम same, everything same. Great, excellent. और तो अभी 2 चीजें मेरे को और क्लियर कर दीजिए बिफोर लॉकडाउन, कि आपका एक्चुअल ऑपरेशंस में कितना टाइम लगता था जनवरी फरवरी में आप तीनों का, सिर्फ अगर ऑपरेशंस एक्चुअल कंपनी चलाने, फैक्ट्री चलाने का आपको हफ्ते में कितने दिन लगते थे? ग्रोथ के लिए नहीं, फैक्ट्री चलाने के लिए, काम चलाने के लिए। मेरे पर्सनली नथिंग, मेरा ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होती थी व्हेन आई यूज्ड टू गो टू फैक्ट्री, इट वाज मोर लाइक कि लोगों की प्रॉब्लम समझना या सिस्टम्स और इम्प्रूव करना या चेंज करना। तो वी हैव 2 फैक्ट्रीज, एक तो कंप्लीट ऑटो पायलट पे है, सेकंड पे ऑलमोस्ट आई वुड से 50% ऑटो पायलट हो चुका है। सो आई वाज मोर इन्वॉल्वड इन डूइंग दैट बिफोर कोविड टाइम। जब फैक्ट्री आता था तो मीटिंग्स फिक्स होती थी कि आज हमने ये करनी है, इसका सिस्टम इम्प्लीमेंट करना है। इट वाज ऑलवेज मोर ऑन दैट रिगार्ड रादर देन कि क्या प्रोड्यूस करना है। वो टाइम निकल चुका है, मतलब वो तो हम करते नहीं। बट आई एम सेइंग ऑपरेशंस में कितना टाइम लगता था वो जो एक फैक्ट्री ऑटो पायलट डाली हफ्ते में? कुछ नहीं, नथिंग, मतलब हार्डली एनीथिंग, मतलब जीरो। पूरी फैक्ट्री जीरो चल रही है, अपने आप चल रही है, आज भी अपने आप चल रही है। मैम, नरेश सर, हाँ जी, वो जो फैक्ट्री है अब उसमें आप लोगों को कितना टाइम ऑपरेशंस पे, मतलब रोजमर्रा के काम पे कितना समय लगाना पड़ता है हफ्ते में? जीरो सर, अपने आप रिपोर्ट मेरे पास आ जाती है। एक्चुअली वो मेरे को तो थोड़ा सा शौक है देखने का भी क्या ब्रेकडाउन है, मेरा इंटरेस्ट वही रहता है कि क्या ब्रेकडाउन। मेरे एक्चुअली यहाँ पर ना कैमरा लगे हुए हैं सारी दोनों फैक्ट्रियों के, हर एक प्रोडक्शन एरिया में। तो हर एक कैमरा से मेरे को देखते थे कौन सी प्लांट चल रहा है, कौन सी मशीन चल रही है, क्या ब्रेकडाउन है, या जनरल
जो हमारा मेंटेनेंस का इंचार्ज है उससे बात कर लेता हूँ, या जो हमारा प्रोडक्शन का इंचार्ज है उसको एनकरेजमेंट देने के लिए उससे बात कर लेता हूँ। क्या मोटिवेशन और नेवर इंटरफेयर्ड इन दी क्या प्रोडक्शन चल रही है, क्या नहीं चल रही, कितनी प्रोडक्शन है, कितनी नहीं है, अपने आप कर रहे हैं। तो अपने आप वो ऑटोमेटिक कर रहे हैं लोग। बट मैं उनसे इन टच रहता हूँ ताकि उनके साथ पर्सनल तार से तार मिली रहे, लिंक बना रहे। दे आल्सो फील एनकरेज। तो उनका भी कोविड फेस कर रहे हैं, उनकी भी प्रॉब्लम्स वही है। मतलब जनरली गप्पे मारने के लिए आप उनसे टच करके मोटिवेशन के लिए टच में रहते हो, काम के लिए और रेगुलर डेली आज माल कितना गया, माल कितना आया, इन्वेंट्री है, डिजाइन बन गया क्या, वो सब गायब हो गया। सब गैप हो गया सर। रिपोर्ट ऑटोमेटिकली हमारे पास आ जाती है, और वो मैं रोज रिपोर्ट देखती हूँ ना, वो 99% वो रिपोर्ट ओके ही होती है कंपनी की। तो सारी रिपोर्टें 99% ओके ही होती है। हमारे को अब ये नहीं पता कि क्या उन्होंने प्रोडक्शन करनी है, क्या नहीं करना, क्या चेंज ओवर है, क्या डिस्पैच है, कुछ नहीं पता। वो मीटिंग्स हैं, वो अपने आप ही ऑटोमेटिकली हो रही है, वो रिपोर्ट आ जाती है, मीटिंग हो गई, और ये रिपोर्ट सारी स्टॉक की भी रिपोर्ट आ जाती जो है हर एक की। आपकी जो है ना गूगल की जो ट्रेनिंग, वो कमाल की है सर, कमाल की चीज है। हालांकि हमारे मेरे को नहीं समझ आती चीजें, तो उसका रिजल्ट्स मेरे को देख के नजर आ रहा है कि सचे। नवीन, कैन यू डू फुल शेयर? अपना स्क्रीन शेयर बंद करोगे? एक सेकंड नवीन। हाँ जी, एक सेकंड। नहीं तो हाँ वो, हाँ जी मैम आप कह रहे थे। और पहले, और ये स्टाफ वही वाला स्टाफ है, अब यही वाला स्टाफ अब पूरा अपने आप काम कर लेता है ऑटोमेटिकली? स्टाफ है सर, वही स्टाफ है। उनका तो वे ऑफ उतना वो बदल ही गया है, बोलने का तरीका ही बदल गया है। बोलने का तरीका मतलब अब वो जो पहले लड़ाई झगड़ा ये वो खत्म, बिल्कुल। वो पॉलिटिक्स, जो स्कोरिंग आती है ना उनकी, हाँ मैं उनसे पूछती हूँ बताओ बेटे अब नेक्स्ट टाइम क्या, मैडम 0, बस दैट्स ऑल। अब जैसे कल मंडे था है ना, आज ट्यूसडे है ना, आज क्या है, आज हाँ, तो आज मेरी जो नेगेटिव स्कोरिंग है ना, उसकी मेरी उनके साथ मीटिंग हुई और उनको मैं वर्चुअल मीटिंग, दिस इज अ वर्चुअल मीटिंग। वर्चुअल मीटिंग, वो 2 या 3 है उसमें बस होंगे, दैट्स ऑल। बाकी सारे पॉजिटिव स्कोरिंग है, वो ऑटोमेटिकली सबको मेल चली गई। और अब वो जो लड़ाई झगड़ा पॉलिटिक्स वो सब खत्म, बिल्कुल है ही नहीं, बिल्कुल। मेरे को कभी कोई किसी का फोन ही नहीं आया अब आज तक। फोन आने बंद हो गए टोटली 99.9%। और पहले पहले तो मैं वही फैक्ट्री होती थी सर, फैक्ट्री में, हाँ फैक्ट्री में होती थी प्रॉब्लम सॉल्विंग, कोई झगड़ा हो रहा है तो मैं ही थी। मैं तो लड़ पड़ता था, झाड़ देता था, पर शी यूज्ड टू काम डाउन। अब ये सब टेंशन आपके दिमाग से चिल्ड हो गई, सब चिल्ड हो गई, पूरी चिल्ड हो गई। वेरी नाइस। कहाँ गई है हमें नहीं मालूम, कहाँ चली, बस कहाँ चली गई हमें नहीं पता, वो कैसे चली गई है। और करप्शन आप ग्रेट है जो हमें अपने ठीक रास्ते पे डाल दिया। करप्शन अब तो नहीं है, बीच में आई थी प्रॉब्लम, अब वो सॉल्व हो गई। अब डर गए, अभी थोड़ा सा अब हमारे उसके ऊपर अभी पूरा काउंटर चेक लगा दिए हमने, काउंटर चेक लगा दिए। वेरी नाइस। मत नहीं, अब जो टेंशन वेंशन थी फैक्ट्री की, सुबह शाम आप दोनों इस उम्र में भी लगे हुए हो, तो वो सब अब गायब हो गई। अब मतलब चिल्ड करके बैठे हो। अब तो सैर करते हैं, रोज प्राणायाम करते हैं, सैर करते हैं, और क्या, टीवी देखते हैं। वेरी नाइस, वेरी आई थिंक मेरे से गई नहीं। तो बेसिकली महाभारत आ रही है और रामायण आ रही है, उसी में टाइम निकल जाता है सारा। वेरी नाइस, वेरी तक जाने का वो टाइम ही नहीं मिलता कि वहां तक देखो उनको। वेरी नाइस। हाँ जी, आप नवीन आप कह रहे थे व्हाट आर द अदर रिजल्ट्स? सो वन वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट आई वुड से, जो आपने एक माइंडसेट चेंज किया था ना इन मी पर्सनली, व्हिच आई गैदर्ड लॉट ऑफ टूल्स फ्रॉम यू, was which helped me a lot in this crisis management. Before COVID, I told that I changed my way of growth. Just before COVID, one last thing, what was the growth? Yeah. Growth about, I would say we've been growing about 20% honestly. Profits growth कितना हुआ है कोर्स के बाद? Profit तो आपको दिख ही रहा है, आपको CC लिमिट्स कहाँ से आई है? वो प्रॉफिट से आई है, कैश प्रॉफिट से आई है। तो ये सारी चेंजेस, ये जितना भी CCVC सब डबल हो गया सर। डबल तो हो ही गया, डबल तो हो ही गया। CCVC सब गायब हो गई जो तभी तो गायब हुई है। अभी तो वी आर ड्यूरिंग कोविड टाइम वी हैव प्रीपेड आवर लोन्स। कोविड के दौरान लोन प्रीपे किए? यस, अभी भी करना है, नेक्स्ट मंथ एक और खत्म करो उनको।
बैंक्स काबू नहीं आते, दे आर अननेसेसरी कॉजिंग. हम तो आज सारे बंद कर दे बैंक्स फॉर दे हैव हाई प्री क्लोजर चार्जेस. आई कैन क्लोज कंप्लीटली डेट फ्री करना है मुझे. बाय नेक्स्ट मंथ वी विल बी डन. वेरी. और ये पहले आप कह रहे हो बहुत हाई था आपके लिए. इट वाज वेरी हाई बिकॉज आज अगर हम कोविड टाइम में अगर एक साल पहले आता तो वी वुड हैव बीन अ बिग ट्रबल. एक साल में टर्न अराउंड किया है. दैट इज ऑल थैंक्स टू यू एंड द होल चेंज इन साइकोलॉजी द वे वी हैव बीन वर्किंग. Very nice. And what were you sharing about COVID now? Fast. So COVID, I was saying quickly that one was the whole mindset change which helped me to cope up this time was कि every crisis is a huge opportunity. So rather than seeing this crisis coming, कल होगा, कल आ रहा है, बीमारी बढ़ रही है with fear and seeing the news and the WhatsApp, I completely shut them down during February. All thanks to what the way you have taught us. And seeing कि इसमें क्या opportunity है, इसमें क्या opportunity आने वाली है, इसमें क्या opportunity आने वाली है. First threat I saw was in my business में मुझे चाहिए सरकार से permission. सरकार से permission मिलना के लिए आपको finding out the right guy मैं पहले ही कर चुका था before lockdown. जिस दिन भारत बंद था उस दिन हमने फैक्ट्री चलाई, देखी जाएगी क्या होगा, because I had permissions के लिए मैंने चिट्ठी लगा चुकी थी. उस दिन फैक्ट्री में पुलिस आई, जी आप क्यों फैक्ट्री चला रहे हो, उनको हमने कागज दिखा दिए, वो चली गई. Day one of the lockdown, जब 21 day announce हुआ था, I had a permission in my hand which was like a golden ticket. But all thanks to the effort which I did before. जब ये lockdown start हुआ, I realized कि potential कहाँ पर है, धंधा कहाँ से मिलेगा, कैसे मैं लोगों को बताऊंगा कि भाई we are working. I was probably the only single unit in our field, the packaging units across the entire India which was working. कैसे मैं लोगों को बताऊं कि भाई आप लोग comfortably factories आओ. Thanks to you, we did the digital marketing, जो मेरा अभी last week खत्म हुआ है. There I learned a lot of tools of communication to clients and customers. I applied those tools to how, I'll just show you one slide just to give you an idea. This was the picture I showed online on, on LinkedIn. This was the day one of the lockdown. Day one of the lockdown, I posted this. Can you see this? That we are making tubes for sanitizers and we are trying to save India from COVID. हम इंडिया को बचा रहे हैं सैनिटाइजर ट्यूब से. या अब इसमें क्या है, ट्रक डिस्पैच हो रहा है, 2 सिक्योरिटी गार्ड खड़े हैं, इसमें क्या नई चीज है. लेकिन जब वो कोविड टाइम की बात हुई और कि हम डिस्पैच कर रहे हैं, दिस ब्रॉट अ ह्यूज अमाउंट ऑफ ट्रैक्शन. सारे कस्टमर्स को, अच्छा आप काम कर रहे हो. आवर फोन स्टार्टेड रिंगिंग, ईमेल स्टार्टेड कमिंग, इवन आवर एक्सपोर्ट क्लाइंट स्टार्टेड सीइंग दैट. वी स्टार्टेड पुशिंग दिस कंटेंट टू देम. और जब वो बताया, I got new business developed, I got huge export orders and a lot of challenges, lot of phases we started. Then we started hearing to our customers. हमको डर था कि हमारे customers अपनी factories बंद ना कर दें कोविड टाइम में, क्योंकि उनके supplies बंद हो जाएंगे. उनको बताना, नहीं जी हम चल रहे हैं, we are working, आप चालू रखो, please keep on running. We work with Nestle, for example. We work with Reckitt Benckiser. These are large corporate companies. So these companies के vendors, अगर key vendors बंद हो जाए, then मेरा धंधा बंद. How do I communicate this to them? I started doing that very aggressively during the first week of COVID. कि भाई we have to keep our done. अपनी टीम का motivation, morale boost करने के लिए we called everyone to our factory in the first week. Literally for first month. कि आप सब लोग आओ. सब लोग डरे हुए थे कि हम लोग क्यों आए जी, जान खतरे में है, हम लोग मर जाएंगे. Fear was so high. And we told them, भैया आज की डेट में infections बड़ी कम है. ये इन्फेक्शन बढ़ेंगी आफ्टर 1.5 months, 2 months, 3 months के बाद. तब हम घर में जाके छुपते हैं ना. Then we'll save ourselves. आज की डेट में आप आओ, टीम को मोटिवेट करो, वर्कर्स को मोटिवेट करो, which we did during that time. And सब लोग आए और सबने सपोर्ट किया, the entire team. So from 700, our workforce dropped to 120 in the first week. My customers were demanding material. कैसे दें? That was the biggest challenge we faced. And then slowly we faced all that. And करते we were able to achieve close to almost about 80% of our turnover जो हम normally per month करते हैं in the first week, in the April itself. 80% April में first week में कर लिया? नहीं, April, not first week. I'm saying the entire April we were able to achieve जो हमारा March का जो होता था approximate turnover, उसका 80% we were able to achieve. So there was a 20% drop in sales, in terms of जो हम 100 करते थे तो हम 80 कर पाए, in the month of April. That's because हमारे काफी फैक्ट्रियां कस्टमर्स बंद हो गए थे. उनकी डिमांड खत्म हो गई थी, उनकी रिक्वायरमेंट, बाकी पैकेजिंग फैक्ट्रियां बंद हो गई थी. पैकेजिंग नहीं, जो हमारे बायर्स थे, कस्टमर्स बंद हो गए.
कस्टमर भी काफी बंद हो गए थे, तो जो मेन अब क्या हुआ कि हमारे कस्टमर्स बंद हो गए, आधे आधे कस्टमर्स बंद हो गए, आधे कस्टमर्स चल रहे हैं, तो आइडियली मैं सेल शुड ड्रॉप टू 40-50%, but we aggressively focused on new business development at that time. This was a time I would say जिंदगी में कभी नहीं आने वाला, कभी भी नहीं आने वाला। उस टाइम पे मैं अगर एक सीनियर मोस्ट, आई एम गिविंग एन एग्जांपल, आई मेड कनेक्शंस विद मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ यूनिलीवर over LinkedIn, started chatting with him at 10 o'clock at night on LinkedIn. वो मुझसे क्यों बात करेगा? With the managing director of Nestle, he's thanking me online कि भाई आप लोगों की वजह से मेरी फैक्ट्री चल रही है। I am sending connection request all across the world कि भाई I am working एक और मेरे को आप orders दो। ये message I made a tremendous amount of traction. तो जो एक business development, जो huge amount of business development करी sitting at homes during this lockdown, I will never forget this experience in my life. It was a huge opportunity. Very nice. We have And acquired a lot of new clients. अभी end result क्या है? अब almost 100 हमारी आ चुकी है, 100 या 101 के आसपास। Last month we have done that. अब हमारे धीरे-धीरे पुराने clients जो बंद हो गए थे, उनको permission मिल रही है, कुछ चालू हो रहे हैं, कुछ बंद हो रहे हैं। कई इंडस्ट्रीज खत्म हो गई हैं, ऐसे कॉस्मेटिक इंडस्ट्रीज, कॉस्मेटिक्स में भी हैव अ लॉट ऑफ एक्सपोजर। अब कॉस्मेटिक्स में आज की डेट में अगर सैलून्स भी स्टार्ट होंगे तो अब मास्क पहने हैं तो लिपस्टिक्स कैसे चलेंगी, लिप कार्ड्स कैसे चलेंगी, यू नो, फेस क्रीम्स, वो अभी उसको टाइम लगेगा नहीं। तो अब उसकी जगह कुछ नया बिजनेस डेवलप करना है ना, दैट्स व्हाट वी डिड। So now आपने नया बिजनेस डेवलप किया and you're back to your 100% sales back जो yes, and looking at 120, 110, 115 now post corona, you know. वेरी नाइस। और ये तब है जब आपके काफी क्लाइंट कैंसिल या बंद हो गए या क्लाइंट ने ऑर्डर देने बंद कर दिए। कई लोग तो ऐसे जो परमिशन भी नहीं ली थी उन्होंने, क्योंकि भारत सरकार है। वेरी नाइस। भारत सरकार से परमिशन लेना भी आसान काम नहीं होता है। They took 15 days, 20 days to हमें काम करने की परमिशन दो। But I cannot sit idle. I have to do something, you know. I have to tell my team. हमको वर्कर्स को बुलाना था, फैक्ट्री में बुलाते गए, आते रहो। Another biggest opportunity I saw in this huge corona time was कि this is a true test of autopilot. True test of autopilot. मैं ऑफिस जाऊंगा नहीं, मेरे पेरेंट्स जा नहीं रहे, आई एम टेलिंग माय एचओडीज आप भी मत आओ, यू नो। अब वो देन क्या ये ऑटोपायलट चल सकता है? आज भी 2.5 months my parents are not gone. I go twice or sometimes thrice a week, that to half a day. और my HODs को मैंने बोला भाई योर फैक्ट्री में आना है, आपकी मर्जी है, आना हो मत आओ। हमने रिवर्स साइकोलॉजी कर दी कि आप अगर आपका उस दिन वर्क फ्रॉम होम है और उस दिन अगर आप फैक्ट्री आए तो आपकी एब्सेंट लगेगी। दिस इज व्हाट वी स्टार्टेड बिगिनिंग ऑफ लास्ट मंथ। तो सबको मैसेज पहुंच गया जी हमें अब घर से काम करना है, अगर हम ऑफिस गए काम करने के लिए तो मेरी एब्सेंट लगेगी। तो बिकॉज ऑफ दैट वी वर एबल टू empower everybody to use all these modern tools. My EAs, they fix up all the meetings, virtual meetings, पूरा कैलेंडर पैक्ड है। उन सब मीटिंग्स में मैं नहीं जाता हूँ, बट द टीम डू इट, यू नो। प्रोडक्शन मीटिंग जो पहले बोर्ड रूम में होती थी अब वो वर्चुअली होती है। जो आपकी सेल्स की मीटिंग होती थी बोर्ड रूम में होती थी वो वर्चुअली होती है। तो एवरी डे कुछ ना कुछ हर घंटे में कोई ना कोई मीटिंग्स हो रही है। So all the work is going on as normal and your production and your sales have come back to normal now, net of net. Even yes, in but we could have not even thought of doing that अगर मेरा सिस्टम ऑफलाइन ERP में चल रहा होता और यूजिंग पेपर इन द पास्ट। आज बिकॉज एवरीथिंग इज ऑन गूगल, हमने जिस दिन लॉकडाउन स्टार्ट हुआ था भारत बंद से, मुझे रिमेम्बर उससे एक दिन पहले मैंने अपने DME को बोला चुपचाप 20 लैपटॉप्स ला, अभी के अभी रात मेरा डिलीवरी कर, एंड आई वांट देम इन माय ऑफिस राइट नाउ। उसको डिस्ट्रीब्यूट करके नेक्स्ट डे चालू करके डिस्ट्रीब्यूट कर दे, क्योंकि भारत बंद जिसे अनाउंस हुआ था कि जी संडे को भारत बंद हो रहा है एक दिन के लिए, दैट वाज आई थिंक 2 days बिफोर एट नाइट 8 PM। उसी टाइम फोन किया जी लैपटॉप ला, गूगल इंस्टॉल कर, कल मुझे सारे डिस्ट्रीब्यूट करने। वी डिड दैट। तो आज थैंक्स टू दैट एवरीबडी नोज कैलेंडरिंग, एवरीबडी हैज नोन शेड्यूलिंग। थैंक्स टू दैट शेड्यूलिंग जो पहले खाली मेरे को आती थी, जो आपसे सीखी, टीम को ट्रेन करा दिया शेड्यूलिंग ऑन गूगल कैलेंडर्स, गूगल मीट्स जिससे वर्चुअल मीटिंग्स होती हैं। सो अब आज की डेट में मैं ये सोच रहा हूँ विच आई एम डिस्कसिंग विद द फादर, हम क्यों जाए वापस फैक्ट्री, लेट्स मेक अ सेपरेट फैक्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट ऑफिस। और 2 कॉर्पोरेट ऑफिस की मैं साइट देखकर आ चुका हूँ अभी ड्यूरिंग दिस कोविड टाइम, क्योंकि दिस माइट बी बेस्ट टाइम टू बाय अ कॉर्पोरेट ऑफिस फॉर फ्यूचर। क्यों जाए वापस फैक्ट्रीज में। So what has been the impact on your life? So business is back to normal, you paid off all your debts, all of that has happened and done. अब life पे क्या, what is the impact on life?
So, can you see my slide? Yes, I can see it. So, life on autopilot. I sent my father to vacations last. जो जाते नहीं थे या कम जाते थे उनको धक्का मार मार के भेजना होता था. So कुछ हमारे customers की international vendor meets होती थी. तो I started telling them कि आप जाओ, go and see, and you know क्यों काम में फंसे हो, enjoy your life. You know, so he's been doing. I think he did 2 or 3 vacations last year. This year in February also, he just before COVID time he came back from Maldives from a vacation. Very nice. और I also did. पहले वेकेशंस होती थी? अंकल आंटी की वेकेशन होती थी पहले? पहले Your बहुत mother will tell. My mother will tell. आंटी की बात बताइए. पहले बड़ी कम वेकेशन थी जी. बहुत कम, मतलब 1%, 1 मतलब 2 साल साल में में 3 साल में एक बार ही, बस 2 साल में. पहले 2 साल 3 साल में एक बार जाते थे. जी. अब आप रेगुलरली जा रहे हो. अब इसकी वजह से फिर ब्रेक लग गई. ब्रेक लगे. कोविड की वजह से ब्रेक लगी, अदरवाइज तो फुल बैटरी चार्ज थी. तो प्लानिंग तो हो गई थी. हमने साल में कसम 3-4 वेकेशंस करनी है यार हर साल. वेरी गुड जी, वेरी गुड. और हमने कर भी ली थी. एक वो क्या थे, मालदीव्स और एक बाली गए थे. वेरी नाइस. अभी बीच में ब्रेक लग गई. ओके. जाएंगे इंशाल्लाह. And you are also going, Naveen, regularly? Yeah, I had last year almost 4 or 5 trips with my family. You know, also doing a lot of vacation, even for production, personal learnings के लिए भी I've been going to a lot of international workshops. Very nice. Attending Tony Robbins and others. Okay. Joined couple of organizations for self-development, motivation. सीख रहे हैं, you know, wherever we can learn more. Very I nice. do a bit of fitness, so I do a lot of cycling is my passion. So lockdown this- for me was big in cycling क्योंकि सारी सड़कें बंद, ट्रैफिक बंद, घर को लॉक किया हुआ है और मुझे मिली हुई है परमिशन और मैं उसका पूरा फायदा उठाया. Roads were empty and I was king of the road. So before lockdown and after lockdown, I continued my passion. Very nice. Very nice. Life is good that way. Yes. All thanks to you. Excellent. Excellent. Very, very good. So maza aa gaya. So you're saying, and all of this is happening while your debts are going zero and your profits, would you like to share how much % profits would have gone up? Net profit. I would rather say not to say, but you know, हमारा इनकम टैक्स डबल हो गया है. इनकम टैक्स डबल हो गया है. चलो ठीक है जी. तो फिर प्रॉफिट तो उससे काफी ज्यादा हो गया होगा. टर्नओवर सेम है. टर्नओवर 10% बढ़ी है सिर्फ. Very nice. अभी But capacity add करिए. New press as we speak is getting installation is going on. During the lockdown हमने last week और project final किया for expansion. Those machines are expected in about 2 months. आपने मेरे को गाइड किया था कि यू शुड बी ऑन द प्रोजेक्ट. मैं फिर प्रोजेक्ट पे था. प्रोजेक्ट के अंदर ही हमारी डेवलपमेंट चल रही है. अभी एक थर्ड फैक्ट्री की बिल्डिंग और बन रही थी, वो भी रुकी हुई है. नेक्स्ट प्रोजेक्ट और भी चल रहा है. अब right. ब्लेसिंग्स. आपने सिखाया ना कि growth is our work. Yes. कंपनी को ग्रो करना is our work. आप बाकी सब तो Brilliant. Very good जी. ठीक है. So चलो जी, thank you. really nice. It was really, really good. And thank you for coming down at such short notice.